प्रोग्राम। सरस्वती वंदना से शुरू करेंगे। हाँ जी, तो ये Sir, shall I start? या सरस्वती वंदना से करेंगे रितिका, शुरू कीजिए सरस्वती वंदना से। Start. Dear friends, panelists, participants, and distinguished guests, Namaskar. Good afternoon to all. I, Atulya Jain, on behalf of Western CP Study Circle, welcome you all on this important study circle webinar. As all of you are aware that the Ganesh Utsav is being celebrated throughout the country. On this occasion, I, on behalf of the Western Study Circle, praise Lord Ganesha for the good health and prosperity of all the members and to save all of us from the disease of Corona. Thank you, Ritika, for praying Ma Saraswati Vandana for us. Now, I invite Shri Sanjay Jain ji, our one of the senior member, please to give welcome address and introductory remarks. Over to Shri Sanjay ji, please. Sapraji has joined us. Sapraji joined us, so please. Tell him. If Sanjay ji, you have no objection, then I would request please Sapraji to give welcome address and introductory remarks, please, for the benefit of the members. Thank you. Sapraji, please. Sir, I welcome all the panelists and participants. I have just joined because I am late. I don't know what this is. My topic is actually accounting standard. And who is the speaker? Mr. Tarnesh K. Gupta? Yes, sir. Yes, yes. Okay. Tarnesh ji, very well. Yes. Thanks to you. You have spared the time. And I hope that today webinar will be very useful for the professionals who are doing the audit job.
because some CAs are in GST practice, some are in income tax, some are in audit. And because today topic is of the audit standard, so the person who are professionals who are doing the audit work, they will be gained out this. And I hope today webinar will, I also congratulate this Manmohan Khemka ji, Mandeep Kapoor ji, so because they are the instrumental to the webinars, giving good knowledge to the professionals. And all welcome to all panelists, Subhash Kamboj ji, Jain Saab, Ravinder R.K. Jain Saab, Sanjay Jain Saab, Manmohan Malhotra ji. Jain Saab बहुत है यहाँ पे, अतुल्य Jain ji. So this profession is held by the Jain, Mr. Jain. My partner is also Jain. I welcome you all. So please, I hand over the mic to the Manmohan Khemka ji. Please proceed further. Thank you. Thank you. Atulya ji, you proceed. Thank you, Sapra Saab, for your kind words. Atulya ji, please proceed. अतुल्या जी का लिंक शायद इस स्टैग्नेशन में है. हाँ. Ravinder Jain ji will give the Manmohan ji, you should unmute yourself if you want to say something. Ravinder Jain ji, please unmute yourself and introduce Tarunesh Gupta ji on behalf of Kroll Veteran Study Circle. So welcome Tarunesh Gupta ji. On behalf of Kroll Center Civil Study Circle. हमें बहुत सौभाग्य है आपका, आज आप हमें थोड़ा सा अपना सेमिनार के लिए गाइड करेंगे. ऑडिट रिपोर्ट आजकल बहुत इतना है कि सेंसिटिव इशू हो गया है, नया कोड ऑफ कंडक्ट भी आ गया है कि सारी जारी की सारी बला सीए के ऊपर है. मतलब कोई भी गलती हो जाए तो सीए जिम्मेवार है. लोगों के दिमाग में ये वहम हो गया कि सीए ही गड़बड़ कर रहा है. ये वहम दूर करना पड़ेगा हमें सोसाइटी के अंदर. सीए तक ऑडिट ही कर सकता है, कि ओपिनियन दे सकता है रिपोर्ट के ऊपर. ये है. तो तरुणेश गुप्ता जी कॉमर्स ग्रेजुएट है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और इनको वो फॉर द लास्ट 38 years ही इज प्रैक्टिसिंग इन द प्रोफेशन, एंड ही इज आल्सो कन्वीनर ऑफ द फॉर्मर कन्वीनर ऑफ द देहरादून सीपी स्टडी सर्कल. He deliberated in seminar organized in NIRC and other particulars on company law and company audit reports. तो तरुणेश गुप्ता जी को वेरी वाइड एक्सपीरियंस है ऑन दिस सब्जेक्ट, और हमें बहुत खुशी होगी आज हम उसकी एक बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर लेंगे, और वो हमें गाइड करेंगे प्रोफेशनल्स को कि कैसे हम इसको आगे अपने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या चीजें नहीं देखनी है. तो वेलकम तरुणेश गुप्ता जी टू स्टार्ट योर डेलिब्रेशंस. Thank you, Ravinder Jain ji, for your kind words. I am thankful to Western CPA Study Circle for giving me this opportunity. डिस्कनेक्शन हो गया. I am seeing so many senior members: Manmohan Khemka ji, Manpreet ji, Atulya Jain ji, Ravinder Jain ji, Sapra ji, Sanjay Jain ji. I can't name. I'm almost. We have so many dignitaries of the profession here on the panelist and also viewing this webinar. By today's subject, the audit report, is a subject which is not very keenly taken by the professionals. If we have the webinars or conferences or lectures on GST or income tax, then the members are very keen and members are very enthusiastic to attend. But normally when the webinars or conferences are on audit report or auditing standards or accounting standards, then most of the members doesn't have much interest in it. जबकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेन थर्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वो ऑडिट है. Our area of working is accounts and audit. Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Our first be to get ourselves well equipped with the auditing techniques, auditing requirements, and what is required by the profession, what is required by the regulators, and what is required by the users of the
audit report which we are giving. If we go to the history of the audit, I'm not going very far off. In early 80s, early 80s is not very far off when we were doing the audit. That time we were doing the line-based auditing. I've seen when we qualified our CA and we started practice, the auditing was like that. We used to check each and every item of the financial statement. Even an item of 100 rupees was important for us. And that was the line-based auditing, and that was considered to be a very, very, very efficient audit because we used to check each and everything. So audit was very efficient. But the audit has evolved over a period of time. जैसे auditing requirement change हो गई, auditor का role change हो गया, auditing का environment change हो गया, auditing की technology change हो गई. उसके बाद mid 80s में we have found that the auditing thrust has changed from the line-based auditing to risk-based auditing. उसके बाद auditing standards picture में आ गए और हम audit करने लगे risk-based auditing. Risk-based means जहाँ हमारे को ज़्यादा where there is a more risk, we have to apply more auditing procedures. We have to go as per the risk assessment. So risk assessment has started in the mid 80s. And that was considered to be a effective audit क्योंकि हम audit कर रहे हैं वहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ audit नहीं कर रहे, तो it is considered to be effective audit और उसको हमने कहा third generation audit है. But of late क्या हुआ? In the last few years बहुत सारे frauds unearthed हुए और जब frauds पकड़े गए सामने आए तो एक ही बात थी कि auditor क्या कर रहा था. जब फ्रॉड हो रहा था तो ऑडिटर क्या कर रहा था. जब कंपनी फेल हुई, कंपनी लिक्विडेशन में गई, डिफॉल्ट हो गई, तो ऑडिटर क्या कर रहा था. तो बेसिक बात कहां आ गई कि ऑडिट बिजनेस फेलियर हैज बीन कंसीडर्ड टू बी द ऑडिट फेलियर. अगर बिजनेस फेल हुआ है तो ऑडिट फेल हो गया. अब ये पब्लिक परसेप्शन हो गया, ये रेगुलेटर का परसेप्शन हो गया. हम एज एन ऑडिटर पब्लिक डोमेन में जो बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि फ्रॉड इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, फ्रॉड डिटेक्शन इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. वी आर द वॉच डॉग, वी आर नॉट द ब्लड हाउंड. सो मेनी थिंग्स वी स्पीक इन द पब्लिक. जब हम पब्लिक में ये बात कहते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड्स, तो इट इज कंसिडर्ड कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं. बिकॉज व्हेन यू आर ऑडिटिंग देन फ्रॉड हैज टू बी डिटेक्टेड बाय यू. ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आई. अब ये पब्लिक डोमेन में आई तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई मीन्स व्हेन आई से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई मीन्स कि हम अब वॉच डॉग नहीं रह गए, ब्लड हाउंड हो गए. अब जो ऑडिट है दैट इज शिफ्टेड टू नॉट फ्रॉम दी, इट इज शिफ्टेड फ्रॉम ऑडिट टू दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑडिट. दिस इज द फोर्थ जनरेशन ऑडिट. अब हम जो ऑडिट कर रहे हैं तो दैट इज मोर ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन देन एन ऑडिट व्हिच वी यूज्ड टू स्टडी इन द ऑडिट बुक्स. और बेसिक परसेप्शन भी पब्लिक का यही है कि आप इसको क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं. और कभी कभी जब हम इसको कंसिडर हम एनालाइज करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी उससे कहीं ज्यादा जो हम कर रहे हैं. बिजनेस फेलियर को हमें देखना हमारी जिम्मेदारी है. अगर बिजनेस फेलियर आज हुआ है तो उससे 3 साल पहले उसके साइन क्यों नहीं आया, हमें 3 साल पहले बैलेंस शीट में क्यों नहीं पता चला कि ये बिजनेस फेलियर की तरफ जा रहा है, हमने उसके गोइंग कंसर्न को इस तरीके से एनालाइज क्यों नहीं किया. ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आई. अगर हम अपने आईज को ओपन रख के हम उसकी बैलेंस शीट्स को, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, तो वी कैन इजीली वेक आउट कि ये कंपनी किधर जा रही है. क्या ये कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जा रही है, क्या ये अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पा रही है, क्या ये कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रही. सो मेनी थिंग्स वी कैन चेक. एंड हाउ कैन वी रिपोर्ट? इट इज द ऑडिट रिपोर्ट. हमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या देना है, कैसे देना है, सो दैट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की, रेगुलेटर्स की हमारे तक शिफ्ट हो रही है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे निभा सकें. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर बेसिक थर्स्ट टू स्टडी द ऑडिट रिपोर्ट. कि ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ही हम अपनी बात कहते हैं, तो हम अपनी बात को पूरी तरीके से कह सकें. So that is why this audit report learning is more important than even doing the audit. तो जब हम ये बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की, तो हम जब लास्ट 2019 में 149219 से ऐसे 700 में अमेंडमेंट आया,
रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट आई SS 700 में। तो बेसिक जो थर्स्ट था उस रिवीजन का, वो बेसिकली इस ऑडिट रिपोर्ट को लाइव बनाना था, उसको इम्पोर्टेंस देना था, और पब्लिक जो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें उसको पब्लिक के, जो हम पहले ऑडिट रिपोर्ट बनाते थे स्टीरियोटाइप ऑडिट रिपोर्ट थी, कॉपी पेस्ट ऑडिट रिपोर्ट देते थे, और जब लास्ट में ओपिनियन देते थे तो बिफोर ओपिनियन जो बातें हम लिखते थे उसमें कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो जब तक कोई यूजर था उस ऑडिट रिपोर्ट के लास्ट में ओपिनियन तक जाता था, वो अपनी उसकी इंपॉर्टेंस को खो बैठता था, तो उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता था। दैट इज व्हाई दैट ऑडिट रिपोर्ट 700 हैज बीन रिवाइज्ड, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट ऑडिट रिपोर्ट में बने और ऑडिट रिपोर्ट लाइव हो जाए। और कैसे लाइव हुई ये हम ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा दिस हैज बिकम वेरी वेरी लाइव ऑडिट रिपोर्ट। सेकंड जो इशू था हमारा कि हम ऑडिट रिपोर्ट के साथ में अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को डिस्कस करें। बेसिकली पर्पस वाज टू डिस्कस द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि जो हम ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट पढ़ेंगे SS 700, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को कवर कर देता है। यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड विच इज ऑफ रेलेवेंस is not covered in the audit report itself by us. So we will discuss the audit report in a way that what standards this audit report is covering and what is our responsibility in that auditing standards. So we will try to discuss those standards in brief, because you can understand how many standards are there. First of all, जो SS 700 हमारा रिवाइज हुआ, SS 700 जो इनिशियली आया था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1/4/2003। 1/4/2003 में जब ये स्टैंडर्ड आया था तो इट वाज वन स्टैंडर्ड वेदर इट वाज मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड। इसके बाद एक रिवीजन आया 1/4/12 से 1/4/12 ऑनवर्ड्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें फिर हमारे पास स्टैंडर्ड्स आ गए दो, SS 700 रिवाइज्ड एंड SS 705। SS 705 वाज एप्लीकेबल ऑन modified opinions. SS 700 revised was applicable for unmodified opinion. इसके बाद 1/4/19 में प्लस SS 706 भी 1/4/2012 से ही आ गया था, 706 जिसमें हम UAM और अदर मैटर पैराग्राफ देखते हैं। 1/4/2019 से जो स्टैंडर्ड में रिवीजन हुआ तो SS 700 रिवाइज हैज बीन फर्दर रिवाइज। तो इसका नाम SS 700 रिवाइज नहीं है, तो नया जो स्टैंडर्ड है दैट इज रिवाइज्ड SS 700। और SS 705 भी रिवाइज हो गया, SS 706 भी रिवाइज हो गया। उसके साथ में नए स्टैंडर्ड्स आ गए, SS 701, SS 720 भी था वो भी रिवाइज हो गया। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, और SS 570 गोइंग कंसर्न वो भी रिवाइज हो गया। ये सारे स्टैंडर्ड जो कि हमारी ऑडिटिंग रिपोर्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऑल दो स्टैंडर्ड्स हैव बीन रिवाइज्ड on 1/4/2019. So now we have 3 SS 700, SS 700, SS 700 revised and revised SS 700. तो कोई भी ओवरलैप, कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्सोलीट नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है। अब हमारे पास तीनों स्टैंडर्ड्स हैं। अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम साइन करते हैं विच इज प्रायर टू 1/4/2012, then SS 700 is applicable. If we sign any financial statement before 2019, then 700 revised is applicable, and whatever financial statement we are signing for, which commence from 1/4/2019, then revised SS 700 is applicable. This is the history of SS 700. Now we come to what has changed. Basically हमने last year SS 700 revised SS 700 पे रिपोर्ट दी है, तो कोई नई बात नहीं है जो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इस चीज को, रिपोर्ट को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉट what has changed in SS 700, but what standards are there in SS 700. Basically purpose is this. So while we'll discuss what has changed also. बेसिक जो ऑडिट है, ऑडिट की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड टू एक्सप्रेस ओपिनियन। द पर्पस टू एग्जामिन इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन। दिस इज व्हाट द ऑडिट इज, और यही ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है हमारे SS 700, SS 200। SS 200 जो हम पढ़ते हैं तो SS 200 इज द मदर ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स। SS 200 पढ़े बगैर हम स्टैंडर्ड्स को नहीं पढ़ सकते।
That is the mother of all standards, because that define what is audit, that define what is the objective of audit, and that defines how to report. Everything is defined as is explained in SA 200. So SA 200 is the mother of standards. With that, we will start. So before we go to SA 700, briefly I will discuss कोई भी होता है और हम जब ऑडिट हमसे Ritika, I think Tarunesh ji has some connectivity problem. Tarunesh ji, I think our speaker. Yes. Sorry, which में आपका कुछ connectivity problem था. ठीक है सर, please. Yes, sir. Whether accounting policies are consistently applied, accounting estimates are reasonable, all these things we will discuss in audit report format also. So I straightway go to the new audit report. The new audit report format is changed from SA 700. So first of all, the major change was the opinion paragraph is given in the preliminary paragraph. First paragraph is the opinion. जिससे जो भी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको पता चले कि ओपिनियन क्या है. जब ओपिनियन पता चल जाता है तो उसका आगे की इंटरेस्ट बन जाता है. अगर ओपिनियन अनमॉडिफाइड है तो आगे ऑडिट रिपोर्ट में उसे क्या पढ़ना है, अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है तो उसे आगे क्या पढ़ना है. तो ओपिनियन पैराग्राफ इज गिवन at the initial as an initial paragraph. So this is the major change which has taken place in this audit report. Secondly, इसमें इंडिपेंडेंस और कंप्लायंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लिसिटली ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैंने एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो इस ऑडिट रिपोर्ट में चेंज आया. थर्डली, जो की ऑडिट मैटर्स SA 701 जिसने इस ऑडिट रिपोर्ट को लाइफ दी है, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जो कि मैंडेटरीली है फॉर लिस्टेड कंपनी, बट इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट कहता है कि इट शुड बी the CA should be encouraged, encouraged to use it even for other companies. जिसमें मैंडेटरी नहीं है उसमें भी यूज करें. कैम पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस, क्योंकि इट हैज गिवन लाइफ टू द ऑडिट रिपोर्ट, हाउ इट शुड बी यूज्ड, व्हेन इट शुड बी यूज्ड, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड. ये बात थोड़ा सा हम की ऑडिट मैटर जरूर डिस्कस करेंगे. हो सकता है कि मेंबर्स का इंटरेस्ट इसमें कम हो क्योंकि मैंडेटरी लिस्टेड कंपनी के लिए है. अब हम ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पहला पैराग्राफ है हमारा ओपिनियन का. अब जब हम पहले मॉडिफाइड ओपिनियन अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते थे तो बेसिस फॉर ओपिनियन तभी देते थे जबकि हमारी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड होती थी. इन द केस ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन हम बेसिस ऑफ ओपिनियन नहीं देते थे क्योंकि हमारा ओपिनियन अनमॉडिफाइड है. बट ये नया फॉर्मेट जो है ये कहता है कि आपको बेसिस ऑफ ओपिनियन इन ऑल रिपोर्ट देना है, वेदर रिपोर्ट इज मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड. अगर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ ओपिनियन? इन दैट केस देयर आर 4 बेसिस ऑफ ओपिनियन. इन दैट केस वी आर सेइंग दैट देयर आर 4 बेसिस ऑफ ओपिनियन. वी आर गिविंग दिस पैराग्राफ. वी कंडक्टेड द ऑडिट. व्हाट four things we are highlighting. The fourth thing which we are highlighting is, first we are highlighting that we are giving this unmodified opinion based on the auditor responsibility paragraph. जो ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ हमने इस ऑडिट रिपोर्ट में दिया है आगे, हम उसको रेफर कर रहे हैं कि ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ को आप रेफर कीजिए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गिविंग दिस ओपिनियन. सेकेंडली, वी आर सेइंग दैट गिविंग दिस ओपिनियन बिकॉज वी हैव अडेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स. We have adhered to the code of ethics and we are independent. Thirdly, what we are saying, why we are
giving this opinion, we are giving this opinion based on the standard of auditing. We have conducted the audit as per the standard of auditing. That is why I am able to give this opinion. Fourth, जो हम base कह रहे हैं, that is we are giving this opinion based on size, based on sufficient and appropriate audit evidences I have in support of my opinion. तो जो भी opinion हमने दिया, whether it was a modified opinion, whether it is an unmodified opinion, हम कह रहे हैं कि हम ये चार चीज बता रहे हैं आपको कि most above all is the sufficient and appropriate audit evidences. जो भी हम opinion दें, उसके लिए हमारी audit file में sufficient appropriate audit evidences होने चाहिए, क्योंकि हम अपनी audit report में clearly assert कर रहे हैं कि हमने जो opinion दिया है based on those evidences दिया है. तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, अगर हम किसी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं और हम लिखते हैं कि वी हैव नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, दैट इज व्हाई वी आर आइदर क्वालिफाइंग द रिपोर्ट और वी आर डिस्क्लेमिंग, बिकॉज वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड, वी हैव नॉट गॉट द एविडेंसेस. इन दैट केस दिस पैराग्राफ हैज टू बी मॉडिफाइड. This paragraph has to be modified, and this when we are seeing that we have sufficient and appropriate audit evidences, that has to be changed accordingly when we are saying that we have not obtained. So this paragraph has to be changed when there is a disclaimer of opinion. Then जो सबसे important paragraph इस audit report में आया, which is applicable to all companies, is the material uncertainty relating to going concern, SS 570. अगर आप पिछले कुछ सालों में जो चेंजेस आए हैं ऑडिट रिपोर्ट में या ऑडिट रिक्वायरमेंट्स में या गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स की परसेप्शन में या यूजर्स की परसेप्शन में, वो जो चीज है वो है गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न को हमें किस तरीके से चेक करना है और गोइंग कंसर्न को हमें कैसे रिपोर्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ऑडिट रिपोर्ट का. हम कभी कभी देखते हैं, हम एक बहुत छोटी सी कंपनी को ऑडिट कर रहे होते हैं, उस कंपनी की पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए से ज्यादा के उसके लॉस हो चुके, बिजनेस उसने कभी किया नहीं, और हम उस ऑडिट को, उस बैलेंस शीट को इतना लाइटली लेते हैं कि हमारा एक जूनियर उस बैलेंस शीट को बनाता है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी बना देता है, और क्योंकि उसमें हमारे को ऑडिट भी कुछ नहीं मिलती है, क्योंकि कंपनी ना तो कुछ काम कर रही है, और हमारे लिए वो रिपोर्ट ऐसी होती है, बैलेंस शीट ऐसी होती है कि जैसे हमने कुछ काम करना ही नहीं था और उतना हमने किया है और हमें एक फॉर्मेलिटी से एक ऑडिट रिपोर्ट देनी थी, दे दी, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कितनी ज्यादा हो गई है, उसकी सारी कैपिटल वाइप आउट हो गई, खत्म हो चुकी, ज्यादा जितनी कैपिटल है उससे कहीं ज्यादा उसकी नेटवर्क नेगेटिव जा चुकी, और हम एक सिंपल ऑडिट रिपोर्ट देके अपनी जान छुड़ा लेते हैं ना, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रिपोर्ट में तो एक्चुअल हम उस चीज कर पा रहे हैं, हम उसको रिपोर्ट को कैसे इन द देन टॉपिक मैटर आल्सो वी विल डिस्कस, अदर इंफॉर्मेशन वी विल डिस्कस. देन इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, जो हमारी पहले ऑडिट रिपोर्ट होती थी उसमें लिखते थे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. was not defined. Management या board जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Practically all these responsibilities are of the board of directors. अब ये हम ऑडिट रिपोर्ट में बहुत एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं कि क्या यहाँ जाता है हमारा उसमें आपको क्लिक करा लें. There we find the management and the of the auditors. So in that paragraph, these paragraphs has to be clearly explicitly written, then only we can write over here. Without taking from the management, we can the audit report.
So this is very important. The next paragraph जो इसमें change आया वो आया going concern. Again going concern is of paramount importance. और going concern को analyze करने की responsibility impact management की है. Manage assessment किया है how concern going वो minimum 12 months अब 12 months से कम कर दें तो we are that will remain, that is going to remain, so that should be there, then that assessment should be there in our audit. Then comes the major important paragraph तरुणेश जी, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसको मैं यस सर आपके एंड पे अगर कुछ लोग ब्रॉडबैंड आपका शेयर कर रहे हैं तो उसको एक बार स्टॉप करा दीजिएगा. आपकी वॉइस में ना डिस्टरबेंस आ रही है बार बार. हेलो, आपकी वॉइस कनेक्टिविटी में तरुणेश जी डिस्टरबेंस आ रही है. अगर जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट अ मोमेंट. क्लियर नाउ? बेटर है, काफी बेटर है. बेटर है, हाँ जी, ठीक. रिपीट कर दो, 2-3 मिनट वाला पीछे कर दो. ये गोइंग कंसर्न से रिपीट कर दीजिए प्लीज. ओके, गोइंग कंसर्न बेसिकली गोइंग कंसर्न एनालिसिस है, दैट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है एज ए 570 में दैट द मैनेजमेंट शैल एनालाइज एंड असेस द गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटरप्राइज. ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी उसके एनालिसिस को एसेस को चेक करने की है और उसको एनालाइज नहीं करने की है. तो जो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, और अगर मैनेजमेंट से हम जो ऑब्टेन करते हैं, अगर वो लेस देन 12 मंथ की असेसमेंट देते हैं तो यू शुड आस्क और कि आप हमें 12 महीने का दीजिए, 12 मंथ की असेसमेंट दीजिए कि दैट द एंटरप्राइज इज गोइंग टू बी गोइंग कंसर्न फॉर एटलीस्ट 12 मंथ. क्योंकि जो भी हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं वो नेक्स्ट 12 मंथ में जरूर गोइंग कंसर्न होना चाहिए. जो उसकी करंट लायबिलिटीज है एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, द एंटरप्राइज इज इन अ पोजीशन टू पे. So we should obtain this going concern from the management and we should keep in our audit file. This is also very important document for the audit file. So far as this paragraph is concerned, and also when we will do the audit report under section SA 570, that will be very important document. Now comes the auditor responsibility paragraph. Basically हमारी जिम्मेदारी यही है. और जब ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ को अगर हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे और जो भी असर्शंस हम इस ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ में दे रहे हैं उसके लिए हमारी रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. जो भी रेगुलेटर हमारी ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा, ही विल चेक व्हाट ही विल चेक कि आपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है. अब जो कुछ हम ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारी फाइल में क्या है. तो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट वर्सेस दी ऑडिट फाइल, ये हमें देखना है कि ऑडिट रिपोर्ट क्या है और हमारी ऑडिट फाइल क्या है. तो इसी को हम पढ़ेंगे, यही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बेसिकली कवर होता है. तो देखिए सबसे पहला पैराग्राफ. यस सर. अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि लॉसेस हैं कंपनी के अंदर, जैसे आपने एग्जांपल लिया है 1 लाख की पेड अप कैपिटल है और लेट्स अज्यूम कि उसमें 50 लाख के लॉसेस हैं बैलेंस शीट में. मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं, हम इसको आगे कवर कर लेंगे और गोइंग कंसर्न इसका बना रहेगा. जनरली हम अभी तक उसको एम्फेसाइज ऑफ मैटर में करके दे देते हैं. अब आप कह रहे हैं कि अगर 12 महीने में आपको पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है तो क्या उस केस में हमें उसको क्वालिफाई करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड ये लिख के दे रहा है कि ठीक है, हम इसको इन फ्यूचर में रिवाइव कर लेंगे. देखिए संजीत जैन जी, मैनेजमेंट कह रही है कि 50 लाख के लॉसी, मतलब 50 लाख की लायबिलिटी उसके ऊपर है, चाहे वो लोन के केस में लोन की तरह से है या कैसे भी है. अब उसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं. डायरेक्टर ने लोन लाया, डायरेक्टर के लोन हो सकते हैं अपने,
या बैंक के लोन है, आपको हमें देखना है कि लायबिलिटी किसकी है, जिसकी पे करनी है। अगर वो लायबिलिटी डायरेक्टर्स की हैं, ऑनर्स की हैं, और वो हमें राइटिंग में दे देते हैं कि दे विल नॉट प्रेस फॉर देयर लायबिलिटीज इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, या आगे 12 महीने जो कंपनी के खर्चे होने हैं, आगे 12 महीने के लिए कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए कंपनी ने क्या टाई अप किया है। अगर वो टाई अप हमें राइटिंग में मिल जाता है, सपोज एक सब्सिडरी है, अगर उसकी होल्डिंग कंपनी उसको फंड कर रही है और होल्डिंग कंपनी राइटिंग में एक अंडरटेकिंग दे देती है कि जो इसके एक्सपेंसेस हैं दैट कंपनी इज गोइंग टू बॉन्ड इन फ्यूचर इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, मींस कि वो 12 महीने के लिए गोइंग कंसर्न हो गया। merely saying कि हम अगले 12 महीने में इसको गोइंग कंसर्न कर लेंगे, उससे हमारी ऑडिट फाइल कंप्लीट नहीं होती, so long as we have the tie ups। अगर टाई अप मिल जाते हैं देन इट्स ए गोइंग कंसर्न। हाँ, नाउ इट इज योर ओन विजडम कि आप उसको एम्फेसिस मैटर में डालना चाहें, क्योंकि इवन इफ टाई अप इज देयर दैट इज बिटवीन यू एंड द कंपनी, जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको तो नहीं पता। मैटर में तो दे ही देना चाहिए ना, अनमोडिफाइड करके। यस, अनमोडिफाइड, यस, अगर टाई अप्स हैं तो। अगर टाई अप्स नहीं है देन आई फील दैट यू शुड गो फॉर क्वालिफिकेशन। अनुनेश जी, यस सर। एक तो अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में शेयर कर दीजिए। सर वो मैं कर लेता हूँ ना, उसमें थोड़ा सा ये कट जाती है। अच्छा देखिए, अगर हो सकेगा तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, चल जाएगी। ठीक है। दूसरा सर, सिमिलर जो अभी संजय जी ने बात की, ऐसे कई सारे केसेस है जहां पर कि प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी सप्लायर की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर्स की या कॉन्ट्रैक्टर की अभी पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग है, और नाउ दिस कोविड टाइम हैज आल्सो कम, और फाइनेंसिंग के टाई अप्स करने की कोशिश कर रही हैं कंपनीज, लेकिन फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स भी अभी डेफर हो रहे हैं, बैंकों से कोई प्रपोजल्स हो नहीं रहे। ऐसे केस में गोइंग कंसर्न के ऊपर सिमिलर नोट डालना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज है कि आपने कहा कि उसके, क्योंकि वो सारी करंट लायबिलिटीज हो गई कंपनी। यस, करंट लायबिलिटीज है, सारी करंट लायबिलिटीज हो गई, और एज ऑन टुडे उसके पास कोई टाई अप नहीं है। यस, ठीक है। रादर एज ऑन द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट, मैं वहां तक ले लेता हूँ आपको। आप सितंबर में साइन कर रहे हैं बैलेंस शीट को, हाँ जी, उस डेट पे भी कोई टाई अप नहीं है। यस, तो हाउ कैन यू फील कि वो 12 महीने के अंदर वो जो क्रेडिटर्स थे, जो भी करंट लायबिलिटी, वो पे कर पाएगा? यस, यही तो कंसर्न है, यही। यस, इन दैट केस आई थिंक एज पर स्टैंडर्ड्स वी शुड क्वालिफाई द रिपोर्ट। ओके सर, इसमें क्वालिफाई करना चाहिए कि इसको कुछ और तरह से रिपोर्ट करना चाहिए कि देखिए, तीन हम 570 इनिशियली डिस्कस ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ही हो जाएगा वो। ठीक है। 3 सिचुएशन हो सकती है 570 में गोइंग कंसर्न में। एक तो ये है कि गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट ने देखा, असेस किया, और मैनेजमेंट वाज ऑफ द व्यू कि गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो गया, और मैनेजमेंट क्या करेगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयर वैल्यू पे ले आएगा, और एज पर फेयर वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जिबिट करेगा, और हम उसको ऑडिट करेंगे। तो उसका प्रेजेंटेशन ठीक है, डिस्क्लोजर ठीक है, तो वी विल नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट। बट इन दैट सिचुएशन, इवन इफ वी आर नॉट क्वालिफाइंग द रिपोर्ट, दैट EOM पैराग्राफ, material uncertainty relating to going concern, we are required to give। यहाँ पर तो मैनेजमेंट ने कह दिया कि मेरी गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही, इसीलिए हम उसको रियलिस्टिक वैल्यू पे लाए। तो हमने EOM में हम ये क्यों देंगे कि गोइंग कंसर्न पे किया? ये इसलिए देंगे कि जो यूजर ऑफ द बैलेंस शीट है उसको ये नहीं पता कि, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट बनी है वो प्रेजेंट वैल्यू, वो फेयर वैल्यू बनी है, क्यों बनी है, गोइंग कंसर्न वर्ड कहीं आया ही नहीं। क्या हमें इसमें ये भी लिखना चाहिए कि जो जितनी भी फिगर्स हैं बैलेंस शीट की, ये सारी रियलिस्टिक वैल्यू पे ले आएंगे? हाँ, ये लिख देंगे, हम कहेंगे हम क्वालिफाई नहीं कर रहे। व्हेन वी आर गिविंग दिस material uncertainty, that means we are not qualifying। we are with the management, but we are user of the balance sheet को हम बता रहे हैं EOM पैराग्राफ से कि समझ ले कि दिस गोइंग कंसर्न इज इम्पेयर्ड। एक तो ये सिचुएशन होती है। सेकंड सिचुएशन हो गई कि मैनेजमेंट और आप में डिफरेंस है। मैनेजमेंट कहता है गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट नहीं हो रहा, I'll make the tie-up, I'll make the tie-up, though tie-up are not there, but you are not accepting his assessment, appropriateness, आप नहीं मान रहे हैं उसकी। In that situation, you will qualify the report,
बिकॉज फाइनेंशियल हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वो बने नहीं है, एंड गोइंग कंसर्न इज इंपैक्टेड इन दैट सिचुएशन यू विल क्वालिफाई द रिपोर्ट, यू हैव नो अदर चॉइस. थर्ड सिचुएशन ऐसी राइज होती है जो मनमोहन जी जैसे आप कह रहे हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं कि जहां टच एंड गो है, जैसे करंट रेशियो माइनस हो गई, 1 से कम हो गई, करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो गई, या और कोई सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जो बता रही है कि उस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो सकती है, आज नहीं है कल हो सकती है, कुछ पैरामीटर्स है जो कि नेगेटिव जा रहे हैं, उसमें टच एंड गो वाली सिचुएशन है. जहां जैसे मनमोहन जी ने कहा कि वो बैंक से टाई अप कर रहे हैं, अभी कोविड के चक्कर में नहीं हो रहा है, तो एज एन ऑडिटर वी कैन टेक दिस कि वो कहां टाई अप कर रहे हैं. इन दैट सिचुएशन ऐसे 570 कहता है यूज दी कैम पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में गोइंग कंसर्न को एक पैराग्राफ बनाते हैं और उसमें लिखे कि गोइंग कंसर्न इसका एनालिसिस मैनेजमेंट ने क्या किया है और हमने इसको कैसे चेक किया है, एंड व्हाट इज ओवरव्यू ऑन दिस, बिकॉज द मैनेजमेंट ने कहा कि हम बैंक से टाई अप कर रहे हैं, तो हमने उसको कैसे चेक किया. मैनेजमेंट ने कहा कि ये फंड इन सोर्सेज से आ जाएगा, तो हमने उसको कैसे ऑडिट किया. इन दैट सिचुएशन कैम पैराग्राफ के अंदर हम उसको की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के हम डिटेल्स जो हमने ऑडिट चेक किया है उसके ऑडिट प्रोसीजर्स को डिफाइन करके हम उसको गोइंग कंसर्न को रिपोर्ट कर सकते हैं. तो तीन तरीके से हम गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस. So these situations have been given in SA 570. Clear है सर? Should I proceed? Right sir. Yeah, sure. तो सबसे पहला पैराग्राफ जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो वो पहला पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव है. हमने कभी ऑडिट रिपोर्ट में ये नहीं बताया, हम किसी को ये नहीं बताते कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो बहुत क्लियरली सबसे पहले हमने ऑडिट रिपोर्ट जब अपनी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, हम सबसे पहले बताया कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है. हमने बताया कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एंड द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट एंड गिव ओपिनियन. ये हमने क्लियरली अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा. फिर हमने लिखा कि रीजनेबल एश्योरेंस, हमने लिखा कि रीजनेबल एश्योरेंस. अब रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट डिफाइंड. रीजनेबल एश्योरेंस कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो हमने रीजनेबल एश्योरेंस को भी डिफाइन किया है यहाँ कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या है. हमने कहा रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई लेवल एश्योरेंस बट इज नॉट ए गारंटी. बहुत क्लियरली हमने ऑडिट रिपोर्ट लिखा है कि इससे हाई लेवल एश्योरेंस बट नॉट ए गारंटी. गारंटी नहीं है कि जो भी ऑडिट एसेज के अकॉर्डिंग कंडक्ट होगा वो सारी मिस स्टेटमेंट को पकड़ सकता है. हमने बहुत क्लियरली लिखा है रीजनेबल एश्योरेंस है, और रीजनेबल एश्योरेंस में हम क्लियरली कह रहे हैं कि एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो हम ऑडिट करते हैं, तो दैट डजंट मीन दैट वी विल डिटेक्ट ऑल दी मटेरियल मिस स्टेटमेंट. मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्टिल वहां परसिस्ट कर सकती हैं इवन आफ्टर अवर ऑडिट, बिकॉज वी हैव कंडक्टेड ऑडिट एज पर एसेज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट व्हेन वी कंडक्ट द ऑडिट एज पर एसेज. यहां हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमने लिखा तो हमने एसेज के अकॉर्डिंग ऑडिट कंडक्ट किया ही नहीं किया, हमें ऑडिट फाइल बताई. अगर हमने अपना ऑडिट एसेज के हिसाब से नहीं किया है तो हम ये प्ली को, ये जो हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका बेनिफिट नहीं ले सकते. तो हमें अपनी पूरी ऑडिट रिपोर्ट से, अपने पूरे ऑडिट डॉक्यूमेंट से बताना पड़ेगा कि यस हमने जितने भी एसेज हैं हमारे उसके हिसाब से ऑडिट किया है. थर्ड, फिर हमने बताया कि मटेरियलिटी क्या है, मिस स्टेटमेंट क्या है. ये सब हमने इस ऑडिट में बताया. हमने कहा मिस स्टेटमेंट वो होती है, इज ए मिस स्टेटमेंट विच कैन इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर किसी यूजर ने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस के ऊपर कोई अपना इकोनॉमिक डिसीजन लिया है और उसका इकोनॉमिक डिसीजन उस पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट से इंपैक्ट होता है, तो दैट इज ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट. मटेरियल जब भी है, सपोज एक कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ और उसमें एक मिस स्टेटमेंट 10 लाख रुपीज की, अगर वो मिस स्टेटमेंट हम ऑडिटर पकड़ लेता तो प्रॉफिट होता 9 करोड़ 90 लाख रुपीज. अगर कोई यूजर इस बेस के ऊपर कि आपके 10 लाख रुपीज की मिस स्टेटमेंट से मेरे को लॉस हो गया, ये जस्टिफाई कर सकता है क्या? वो अगर 10 लाख के प्रॉफिट, 10 करोड़ के प्रॉफिट में जो यूजर इन्वेस्ट कर रहा था, क्या 9 करोड़ 90 लाख पे वो इन्वेस्ट नहीं करता? क्या सिर्फ 10 लाख से उसका इकोनॉमिक डिसीजन इंपैक्ट हो सकता था? दिस इज दी मटेरियलिटी. अगर वो उसके इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट करने की सिचुएशन में है वो मिस स्टेटमेंट, देन ओनली दैट मिस स्टेटमेंट इज ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट. ये मटेरियलिटी ऐसे 320 थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे. मटेरियलिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर.
ये पैराग्राफ में हमने बताया कि हमने किया क्या है। इसके बाद हमारी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेस के हिसाब से हमने डिफाइन की है। मैं इन पैराग्राफ को कहता हूँ 1+7+1 पैराग्राफ, 9 पैराग्राफ है टोटल, 1+7+1 पैराग्राफ। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये अगेन ऐसे 200 से आया है। हमने कहा कि जो हमने ऑडिट कंडक्ट किया, वी एक्सरसाइज्ड प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। ये दो वर्ड हैं जो ऐसे 200 में बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट, एंड दैट टू थ्रू आउट द ऑडिट। अब ऐसे 200 में प्रोफेशनल जजमेंट को डिफाइन किया, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोफेशनल इनपुट्स, एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल इनपुट्स comprising standards in coming out with a proper conclusion। जो भी conclusion opinion हमने दिया है वो हमने प्रोफेशनल इनपुट्स को अप्लाई करके लिया है और अपने स्टैंडर्ड्स को यूज करके लिया है। अब हमारे इनपुट्स क्या है? इनपुट्स ऐसे टोन में डिफाइन किए हैं, इनपुट्स आर आवर नॉलेज, आवर स्किल एंड आवर एक्सपीरियंस। 3 इनपुट्स हैं हमारे, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हम सीपी प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारी नॉलेज है। स्किल है, जितना हम काम करते हैं वी गेट द स्किल। एंड एक्सपीरियंस कैन बी ऑफ द ऑडिटर एंड एक्सपीरियंस कैन बी ऑफ द अनदर एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। सपोज मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मेरे को कहीं कोई चीज क्लियर नहीं है, आई कैन टेक द हेल्प ऑफ माय सीनियर्स, अदर एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक्सपीरियंस, तो these 3 inputs are there। Then we have the standards. What standards we have? We have the auditing standards, we have the accounting standards, and we have the ethical standards. We are talking about these 3 standards. तो प्रोफेशनल जजमेंट जो है, जब हम बात करेंगे, हमने थ्रू आउट द ऑडिट यूज किया। भाई थ्रू आउट द ऑडिट, क्योंकि जब भी ऑडिट करते हैं तो जजमेंट हमें हर स्टेप पे यूज करनी पड़ती है। कहाँ फ्रॉम स्टार्ट टू दी ओपिनियन। स्टार्ट मीन्स स्टार्ट इवन बिफोर दी स्टार्ट। हमें एक ऑडिट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, इसे प्रोफेशनल जजमेंट। हमने एक ऑडिट को कंटिन्यू करना है नहीं करना, इसे प्रोफेशनल जजमेंट। फिर हम प्लानिंग ऑफ ऑडिट, हम ऑडिट प्लान कर रहे हैं तो दिस इज ऑल जजमेंट। हमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, दिस इज ऑल जजमेंट। मेटेरियलिटी क्या है, दिस इज जजमेंट। सैंपल साइज क्या होगा, दिस इज जजमेंट। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, दिस इज जजमेंट। ऑडिट एविडेंस इज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, दिस अगेन हमारी जजमेंट है। ओपिनियन कौन सा देना है, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, विच ओपिनियन, इज जजमेंट। So throughout the audit we have to use the professional judgment, और हमारे को ऑडिट फाइल में दिखाना है कि हमने अपनी जजमेंट को कैसे यूज किया है। नेक्स्ट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो वर्ड है, स्केप्टिसिज्म का जिक्री मीनिंग है शक करना, बट पर्पस यहाँ शक करना नहीं है। इसको डिफाइन किया है हमारे ऐसे 200 में, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग कि जो भी आप देखते हैं उस पर क्वेश्चन रेज करें। Why should be like this? Why a transaction should be like this? Why in Satyam Mantra, which was a real estate company, we merged? Basically, what is the reason behind a particular transaction? Questioning mind. Why? How? A chartered accountant should have this attitude. Then being alert to a situation. कभी-कभी क्या होता है, हम ऑडिट करते हैं, कभी हमें वहां एक स्टाफ ऐसा मिलता है जो कि हमें बहुत सारी चीजें बता सकता है। Out of the books of accounts, we gather so many information outside the books of accounts. The only thing is we have to be alert. हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ से हम क्या गैदर कर सकते हैं। Alert to a situation, या जो भी हमें एविडेंसेस मिल रही हैं, critically examining the evidences. सत्यम के केस में एफडीआर की फोटोकॉपी एक्सेप्ट कर ली, we should not be accepted. So you have not, you should be alert to what evidences are being produced. तो वो भी जो sufficient appropriate audit evidence क्या होती है, that we have to understand. So being alert. So this is professional skepticism. अगर आप recent केस में ILFS के केस में SFIO ने सीरियस चार्ज जो ऑडिटर के अगेंस्ट लगाया है, वो लगाया है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि ऑडिटर ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज नहीं किया। जो ILFS ने फाइनेंसिंग की, उसकी जो बुक थी, उसकी जो लोन्स का जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन था फाइनेंस करने से पहले, वो ऑडिटर ने नहीं देखा। ऑडिटर वाज सपोज टू सी द अप्रेजर ऑफ द फाइनेंस। हम बैंक ऑडिट करते हैं तो देखते हैं कि अगर किसी बोरोवर को फाइनेंस दिया है तो उसकी एनालाइज, उसको एक्सेस किया कि नहीं है बैंक मैनेजर ने। वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अदर देन बैंक में नहीं देखते, हम NBFC में नहीं देखते,
In NBFC also we have the same responsibility as we have in the bank. तो अगर NBFC ने फाइनेंस किया तो उसका उसने कैसे एनालाइज किया है, कैसे असेसमेंट किया है, that is most important part of the audit. So प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये दो पार्ट हैं जो कि एक ऑडिटर की क्वालिटीज हैं, एंड दीज क्वालिटीज आर वेरी सीरियस क्वालिटीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज. इसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी में आता है, हम कहते हैं एक एक लाइन में आप देखेंगे एक एक स्टैंडर्ड को कवर कर दिया. हम सोचते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है. पहली लाइन कहते हैं आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर. हमने कहा आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. अब क्या हुआ, कंपनी एक्ट 2013 आया, 143(3)(I) IFC के ऊपर रिपोर्टिंग के लिए हमारे को कहा गया. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर हमें रिपोर्ट करना है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की डिजाइनिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन. हमने कहा ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हाउ कैन वी रिपोर्ट ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. हमारा इंस्टीट्यूट हमारे सपोर्ट पे आया, हमारे इंस्टीट्यूट ने कहा ओके यू आर राइट, you are not supposed to report on IFC as such, but internal financial controls with respect to financial reporting you are supposed to. ये भी पॉइंट ऐसा था जो कि हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कभी थी. अगर हम 2009 ऐसे 315 कोई कंसल्टेंसी देके आ गया ऐसे 315 अगर हम 16 लाख रुपए का वो बोल के आया हूँ, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे 315 अगर हम देखें क्या बोलते हैं इसको. मनमोहन जी जरा देखिएगा. एक मिनट देखता हूँ सर, किसी का माइक ऑन है. मैं आई रिक्वेस्ट नरेश कंसल जी अपना. ठीक है जी, प्लीज कैरी ऑन. 2009 जब 315 आया तो हमने 315 को देखा नहीं. 315 क्लियरली रिक्वायर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स to go to internal financial controls. Without going to the internal financial control, you cannot do audit. 315 clearly states risk assessment procedure. Basel audit आज हमारा risk based audit है, and risk assessment procedure is the primary objective of the audit, primary step of the audit. जब भी हम audit start करेंगे from ऐसे 300 planning जब हम करते हैं, planning का पहला part है हमारा IFC. पहला part क्या है, identify and assess the risk of material misstatement through अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. सबसे पहले मैं देखना जिसको ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी को, वो एंटिटी क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उस एंटिटी वेदर वो एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, कर रही है, या कोई फाइनेंस कंपनी है, रेगुलेटेड कंपनी है, अनरेगुलेटेड कंपनी है, फार्मा कंपनी है. क्योंकि जिस हर कंपनी के अपने रिस्क है, मैन्युफैक्चरिंग के अपने रिस्क है, फार्मा के अपने रिस्क है, एनबीएफसी के अपने रिस्क है, इंश्योरेंस कंपनी के अपने रिस्क है, ऑल इंडस्ट्री हैज इट्स ओन रिस्क. तो हमें सबसे पहले देखना है जिस इंडस्ट्री को जो एंटिटी पर्टेन करती है उस इंडस्ट्री के रिस्क क्या है. सो अंडरस्टैंडिंग द आरएमएम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी. पहले एंटिटी को देखना है, एंटिटी क्या है, ऑनरशिप, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, लिस्टेड है, तो उसके अपने रिस्क है. प्रोप्राइटरशिप के अपने रिस्क हैं, लिस्टेड कंपनी के अपने रिस्क हैं. तो वी हैव टू चेक द रिस्क. फिर हमें देखना उसके सप्लायर्स कौन है, सप्लायर्स के रिस्क क्या है, वो एंटिटी ट्रांजेक्शन क्या कहाँ करती है, वेदर इससे ग्लोबल कंपनी और से विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंपनी काम कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, उसका फाइनेंशियल, उसका एक्सपोजर क्या है, उसके फाइनेंस एक्सपोजर क्या है. आपको कंप्लीट उसको एनालाइज करना है, उसके सारे रिस्क देखने हैं. उसकी फाइनेंसिंग बैंक से हुई है, उसकी फाइनेंसिंग प्राइवेट फाइनेंसिंग है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर क्या थी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इस साल क्या है, उसकी टर्नओवर लास्ट ईयर क्या थी, उसकी टर्नओवर इस साल क्या है. ये सब चीजें हमारे को स्टार्ट में, बिफोर डूइंग दी ऑडिट, बिफोर स्टार्ट दी ऑडिट, हमने अपने स्टाफ को ऑडिट फाइल देके भेजना नहीं है कि जाके वाउचिंग कर लो. नो, दैट इज नॉट द ऑडिट वी आर डूइंग नाउ. सबसे पहले हमारी ऑडिट फाइल में उस एंटिटी का पूरा उसकी हॉरोस्कोप होनी चाहिए, उसकी सारी राशियां मिला लो और पता कर लो कि उसके पास कौन सी दशा चल रही है, और उसी दशा के बेस पे हमें ऑडिट करना है. यहाँ हम जब ऑडिट में पढ़ते थे, we have 3 types of risk: inherent risk, then we have the control risk, then we have the detection risk. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं inherent risk की. ये जितने भी रिस्क हैं ये सारे इस एंटिटी के inherent risk हैं, और वो सारे inherent risk हमारी फाइल में होने चाहिए.
अगर उसकी टर्नओवर डाउन हो रही है तो वो एक इनहेरेंट रिस्क है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो रही है तो वो उसका इनहेरेंट रिस्क है, अगर उसकी क्रेडिटर्स को पे नहीं कर रहा वो, या उसकी कोई मेजर कस्टमर है वो बैड हो गया, उसकी डिमांड खत्म हो गई, या जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहा था उसकी डिमांड खत्म हो गई, या आज कोविड है इंटरनेशनली इम्पैक्ट हो रहा है, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो क्या वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, उसका क्या इम्पैक्ट है। सो ऑल रिस्क आर द इनहेरेंट रिस्क ऑफ द एंटिटी। अब उसको हमें सबसे पहले अपने फाइल में लिखना है, ये हमारा पहला है SS315, असेसिंग द रिस्क ऑफ द एंटिटी। जितना अच्छा हम रिस्क असेसमेंट करेंगे उतना अच्छा हम ऑडिट करेंगे। अगर हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर जो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है वो देख लें, जो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है उसके अंदर एक CD है। आई एम जस्ट गिविंग वेरी यूजफुल इनपुट। उस CD में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। अगर आपके एंटरप्राइज नहीं है तो हर एक प्रोसेस के लिए इंटरनल कंट्रोल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। अगर हम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल डिस्कस करेंगे तो ये अपने आप में 2 घंटे का चैप्टर है। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल समझना है। जब हमने अपने इनहेरेंट रिस्क को समझ लिया, फिर हमारे को इनहेरेंट रिस्क के बाद जो हमारा SS315 कहता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल। व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल्स? हम देखते हैं जो भी इनहेरेंट रिस्क हमने देखे हैं उसको एंटिटी ने कैसे कंट्रोल किया है। उन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए एंटिटी ने कौन से कंट्रोल्स को डिजाइन किया है और इम्प्लीमेंट किया है। उन कंट्रोल्स के हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन से ऐसे रिस्क हैं जो एंटिटी के जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर्ली उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मिटिगेट नहीं कर पा रहे। दिस इज कॉल्ड RCM, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। हमें किसी हर एक रिस्क को, जो भी हमने रिस्क निकाले हैं, उसको डिफाइन कर, उसको क्लासिफाई करना है कि ये रिस्क मटेरियल रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, ये नॉर्मल रिस्क है। अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक नॉर्मल रिस्क है तो उसके लिए हमें क्या करना है, और उन रिस्क के लिए हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने इफेक्टिव हैं। अगर नहीं इफेक्टिव है तो हमारे को ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगाने। ये पैराग्राफ हम आगे पढ़ते हैं। हमने कहा आइडेंटिफाई द रिस्क, देन ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट इज सफिशिएंट एंड डिजाइन परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रेस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। जो हमने रिस्क निकाले उसके हिसाब से हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना और परफॉर्म करना है। मींस जो रिस्क हमारे पास आए, सब जो हमारे नॉर्मल रिस्क थे या हमारे एबनॉर्मल रिस्क थे, अगर हमारे सिग्निफिकेंट रिस्क है तो उसके लिए मैंने कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए, नॉर्मल रिस्क है तो कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए, ये थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अभी। वो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। देखिए, जब हम ऑडिट करते हैं, मैंने कहा कि हमने ऑडिट प्रोसीजर अडॉप्ट करने से पहले रिस्क असेस किए। अब हमारे पास 2 तरीके के रिस्क आ गए, एक है सिग्निफिकेंट रिस्क, एक है हमारे पास नॉर्मल रिस्क। अब हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए और हमने एक की तरीके के ऑडिट प्रोसीजर कैसे चेक की, तो what we can do more for significant risk. We can use experienced staff, we can use nature when we do the audit, nature, timing and extent of the audit procedure। कि हमने जो उसका सैंपल बनाया, सपोज किसी नॉर्मल रिस्क के ऊपर हमने ऑडिट जो सैंपल बनाया और एबनॉर्मल रिस्क पे जो हमने बनाया या सिग्निफिकेंट रिस्क पे बनाया, तो दैट सैंपल इज डिफरेंट। उसमें हमने ज्यादा आइटम्स कवर किए या हमने उस लगाया कहीं, जब हम ऑडिट करते हैं, प्लान करते हैं ऑडिट या हिसाब से जो कवर्ड। अब वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाती है जब अभी हाँ, वो रिजॉइन कर रहे होंगे बस। और ऐसे कि हमें कौन से ऑडिट
तो ये 2 लाइन में हमने 2 स्टैंडर्ड्स कवर कर दिए, SA 315 एंड SA 330। SA 315 इज द हार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कहा SA 200 इज द मदर ऑफ स्टैंडर्ड, SA 315 इज द स्टैंडर्ड। मैं 3 स्टैंडर्ड की हमेशा बात करता हूँ कि अगर हम 3 स्टैंडर्ड अगर इंडेप्थ पढ़े हैं तो हमने हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, SA 200, 315 एंड 330। इन 3 के अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम ऑडिट को जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमने कहा रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज हायर, डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ कोलिजन होता है, क्योंकि फोर्जरी होती है, मैनेजमेंट ओमिशंस होती हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है और ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता है। अब ऐसे 240 के अंदर हमारे को बताया गया कि फ्रॉड के केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसे 240 ने क्लियरली कहा कि डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड वी कैन टेक द शेल्टर ऑफ ऐसे 240। अगर फ्रॉड कहीं हम नहीं पकड़ पाते, वी कैन टेक द शेल्टर ऑफ ऐसे 240, बट व्हेनेवर वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ एनी स्टैंडर्ड, so we have to see whether we have followed that standard or not. If we have not followed the standard and we take the shelter of that standard, that is not possible for us. So ऐसे 240 कहता है कि हमें मान के चलना पड़ेगा in any financial statements that there is a fraud, that there exists a fraud. आपकी पहली फर्स्ट जो आपकी थॉट है वो यही है, there exists a fraud. फिर आपको एक एक आइटम को चेक करना है, शेयर कैपिटल, unsecured loan, secured loan, each and every item you take and you see whether fraud can be there in that or not, and you vouch in your file कि आपने उसमें क्यों नहीं सोचा कि इसमें फ्रॉड नहीं है, आपने कैसे उसको पिन पॉइंट नहीं किया। एक चीज। दूसरी चीज, ऐसे 240 कहता है आपका सब कुछ क्लियर है, बट देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये 2 एरियाज हैं जिसमें these are the most risk areas, these 2 areas are the most risk areas, और आपको fraud areas, और आपको अपनी ऑडिट फाइल में क्लियरली डॉक्यूमेंट करना है why you have not considered there is no risk in revenue recognition। क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन में उसके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और आपने उसमें कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, आपने इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक किया, जिससे आपने अपने आप को ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि यस आई feel that there is no fraud in revenue recognition. Second is the override of internal control. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जब इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं हमेशा स्मॉल एंटरप्राइज। हम ऑडिटर की जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑडिटी है वो इतनी छोटी कंपनी है, वहाँ इंटरनल कंट्रोल तो जानते ही नहीं क्या होता है, तो हम उनसे IFC कैसे लें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ आती है कि हमने IFC चेक किया, हम ऑडिट, क्योंकि हम 315 को कह रहे हैं हमने ऐसे 315 से ऑडिट किया है, बट हमारी फाइल में कहीं भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जिस भी एंटरप्राइज का ऑडिट कर रहे हैं, अगर एक ट्रेडिंग एंटिटी है तो ट्रेडिंग एंटिटी हैज सम स्पेसिफिक प्रोसेसेस। ट्रेडिंग में आपका परचेज एक प्रोसेस है, सेल एक प्रोसेस है, इन्वेंट्री एक प्रोसेस है, अगर उसने लोन ज्यादा लिए तो लोन एक प्रोसेस है, डेटर्स रिसीवर्स से जो अपने पेमेंट रिसीव करते हैं उसका एक प्रोसेस है। 5-6 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस एक एंटिटी में है, ट्रेडिंग एंटिटी में। अगर हम उस एंटिटी से सिर्फ इतना सा ले लें कि बताइए आप परचेज करते कैसे हैं, हु प्लेस द ऑर्डर, हु चेक द क्वांटिटी, हु चेक द क्वालिटी, हु एंटर्स द बिल, हु मेक्स द पेमेंट, जो एक 8-10 आइटम जो आप समझते हैं कि एक प्रोसेस में होनी चाहिए, आप उससे एक राइटिंग में ले लें, इट इज एक क्वेश्चन बना दें प्रैक्टिकली, तो जो भी मेजर प्रोसेसेस ऑफ दैट एंटरप्राइज हैं आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और दैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नॉर्मली हो सकता है कि आपका जो एंटरप्राइज का जो ओनर है, इससे प्रोप्राइटरशिप, वो कहता है सब कुछ मैं खुद करता हूँ, कोई बात नहीं है, यू राइट, ऑर्डर भी मैं प्लेस करता हूँ, रिसीव भी मैं करता हूँ, क्वालिटी मैं चेक करता हूँ, पेमेंट भी मैं करता हूँ, जो एक्चुअल कर रहा है, या आपने कोई कहानी नहीं लिखनी है, जो भी एंटरप्राइज में हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है वो आपको लिख के दे देता है। उसके लिखने के बाद आप उसको एज इट इज चेक करते हो वो कैसे करता है, तो आपने IFC देख लिया और IFC को चेक भी कर लिया, आपकी ऑडिट फाइल में IFC कंप्लीट हो गया। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर उसमें आपको कोई वीकनेसेस लगती हैं तो वो आपको मेजर वीकनेसेस है और उसको आपको देखना है। हाँ, अब जो मैं बात कर रहा था मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, जब छोटी एंटरप्राइज होती है तो नॉर्मली मैनेजमेंट जो होती है, जो ओनर जो होता है, ओनर ड्रिवन कंपनी में वो सब कुछ कर रहा होता है, वहां रिस्क आपका और बढ़ जाता है। उसको प्रॉफिट मैनिपुलेट करना है तो वो परचेज डाल देगा, उसको प्रॉफिट मैनिपुलेट करना है वो खर्चे डाल देगा, तो रिस्क इज हायर इन मैनेजमेंट ओवरराइड इन सच सिचुएशन व्हेन owner the company is owner driven company। आपको
सिर्फ ऑनर को नहीं देखना, आपको यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स अथॉरिटीज को देखना है, आपको बैंकिंग को देखना है, आपको जो भी यूजर है उसको देखना है कि किसी और के साथ तो फ्रॉड नहीं हो रहा है. सो इन दैट सिचुएशन मैनेजमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ कंट्रोल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिस्क, एरिया ऑफ फ्रॉड. इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड क्या कहता है कि नॉर्मली जो फ्रॉड होते हैं जर्नल एंट्रीज से होते हैं, नॉर्मली जो फ्रॉड होते हैं जर्नल एंट्रीज से होते हैं. तो यू हैव टू चेक ऑल द जर्नल एंट्रीज, एटलीस्ट नॉन स्टैंडर्डाइज जर्नल एंट्रीज. जनरल एंट्रीज आर टू टाइप्स. स्टैंडर्डाइज जनरल एंट्री जो कि हमारी होती है, प्रोविजन की एंट्रीज हम करते हैं, बैड डेट की, अगर कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री है या कोई इंटरेस्ट की एंट्री है, दो जनरल एंट्रीज आर देयर, दोज आर स्टैंडर्ड एंट्रीज. यू हैव टू सी all those general entries which are not standardized, those should be thoroughly checked. So this is how you can check the fraud area. Then next is the obtaining understanding of the IFC. ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, इसी में कवर हो गया. अब इसमें जो बात है, जिस केस में, जिन पार्लियामेंट कंपनी के केस में हम IFC को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें मैंने अंडरलाइन किया है कि ये 4 लाइन हम उसमें से डिलीट कर दें कि हम इसमें IFC को रिपोर्ट कर रहे हैं. ये हम चेंज कर देंगे. नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज. जो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है, जो एस्टिमेट्स हैं वो रीजनेबल हैं, और रिलेटेड डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट ने कर दिए हैं. ये एस्टिमेट जो है, दिस इज आल्सो वेरी ग्रे एरिया. दिस इज वन ऑफ द फ्रॉड एरिया. दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया. आई से नॉट फ्रॉड एरिया, सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया. ये जो एस्टिमेट होते हैं, ये रिस्क एरिया इसलिए होते हैं कि इसमें मैनेजमेंट का अपना बायस आ जाता है. मैनी टाइम्स बायस भी आए तो एक छोटे सा इनपुट उस पूरे एस्टिमेट को खराब कर देता है. और नॉर्मली जो हम एस्टिमेट को यूज करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और हम एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेस के ऊपर उसका प्रोविजनिंग या एस्टिमेशन अकाउंट फॉर किया होता है, और हम नॉर्मली डोंट चेक दोज एस्टिमेशन. यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें देखना है कि जो एस्टिमेट्स हैं, अगर किसी एक्सपर्ट को यूज किया तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है. जो एक्सपर्ट हमारा स्टैंडर्ड है, हमें 600, 610, 620 के हिसाब से हमें उसको चेक करना है. और 540 जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स है, हमें देखना है कि इनपुट्स, कोई भी एस्टिमेट इनपुट तो मैनेजमेंट ने दिया होगा. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ग्रेच्युटी का. ग्रेच्युटी के केस में हम एक्चुअल की वैल्यूएशन के हिसाब से प्रोविजन करते हैं. मैंने एक केस में देखा, हमारे क्लाइंट के केस में जो एक्चुअल वैल्यूएशन था, उसमें जो डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखा था 60 ईयर्स लिखा था. बट हम जब ऑडिट कर रहे हैं, हमें एंटरप्राइज पता है, वहां जो स्टाफ था वो 60 ईयर्स अबव भी था. तो आई सिंपली आस्क कि आपने 60 ईयर्स का रिटायरमेंट एज कैसे लिखा. तो पता चला कि ना तो मैनेजमेंट ने 60 ईयर्स बताया, वो एक्चुअल नॉर्मली उसके जो डाटाबेस में 60 ईयर्स था, उसके बेस पर सारा वैल्यूएशन कर दिया. एंड आई टेल यू, सिंपली बाय चेंजिंग द डेट, द एज, 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग होगी. So input is very important part. आप जब भी एस्टिमेट चेक करते हैं तो इनपुट गिवन बाय द मैनेजमेंट, उसको हम जरूर चेक करें. नेक्स्ट गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न को हमने डिस्कस कर लिया है. आई डोंट थिंक अगेन आई एम रिक्वायर्ड टू डिस्कस. देन ओवरऑल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं. हमारा पार्ट 3 के हिसाब से, कंपनी एक्ट पार्ट 3 के हिसाब से है. नेक्स्ट इज द मेटेरियलिटी. ऐसे 320 मेटेरियलिटी हम प्लानिंग स्टेज के ऊपर सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि किस मेटेरियलिटी के ऊपर हम ऑडिट कर रहे हैं. एक तो होता है कि जब हमने लास्ट ईयर जो कंटिन्यूइंग ऑडिट है उसके बेस पे हम देखते हैं मेटेरियलिटी हम लास्ट ईयर क्या थी, क्या इज देयर एनी चेंज व्हेन द मेटेरियलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज. मेटेरियलिटी हम 2 तरीके ऑफ मेटेरियलिटी की बात करते हैं, एक इज दी ऑपरेशनल मेटेरियलिटी, एक ओवरऑल मेटेरियलिटी. ओवरऑल मेटेरियलिटी मैंने हमने डिस्कस किया था, मेटेरियलिटी वो है जो कि किसी यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इम्पैक्ट करती है. अब किसी भी एंटरप्राइज के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर आपको मेटेरियलिटी कैसे डिफाइन करनी है, इट कैन डिफर. इट कैन बी अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इट कैन बी परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, इट कैन बी परसेंटेज ऑफ एसेट्स, इट कैन बी परसेंटेज ऑफ द करंट एसेट्स, इट कैन बी एनी क्राइटेरिया, इट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ द एंटरप्राइज. सपोज एक आप एनबीएफसी का ऑडिट कर रहे हैं तो इसकी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो और उसकी बैलेंस शीट है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है. प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक बहुत छोटी आइटम होती है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वेयर जो उसकी बैलेंस शीट है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होती है. तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया, परसेंटेज ऑफ द एसेट्स कैन बी द क्राइटेरिया और मेटेरियलिटी. अगर सपोज 100 करोड़ के लोन है और प्रॉफिट उसमें 10 लाख रुपए का, अगर हम 5% ऑफ प्रॉफिट रखते हैं तो 50,000 कैन, हाउ कैन इट बी मेटेरियलिटी. अगर एक लोन भी बैड हो गया 5 करोड़ रुपए का तो 50,000 तो कुछ भी नहीं है. तो मेटेरियलिटी कैन
हैज टू बी, यही हमारी प्रोफेशनल स्टेप्स और प्रोफेशनल जजमेंट दोनों यूज होंगी टू सी व्हाट शुड बी द मटेरियलिटी इन ए पर्टिकुलर एंटरप्राइज। तो प्लानिंग स्टेज पे हम मटेरियलिटी डिफाइन करेंगे, और जब हम ऑडिट करेंगे ड्यूरिंग द ऑडिट अगर हमें लगता है कि जो हमने सर्कमस्टांसेस जो हमने एनालाइज किए थे एट द इंसेप्शन स्टार्ट ऑफ द ऑडिट उसमें कोई चेंज आया तो हम मटेरियलिटी को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो दिस इज मटेरियलिटी हमारे को शेयर करना विद द मैनेजमेंट, इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बात करूं तो एक 100 करोड़ की टर्नओवर किसी कंपनी की है और एक 5 लाख रुपए का मशीनरी का बिल परचेज में चला गया, हमारे ऑडिटर ने नहीं पकड़ा, हमारी ऑडिट स्टाफ ने नहीं पकड़ा, कल को क्या होता है, वो जो मैनेजमेंट है वो हमसे शिकायत करती है कि आपका ऑडिट स्टाफ ढंग से ऑडिट नहीं करता, 5 लाख का मशीन का बिल है जो परचेज में चला गया था उसने नहीं पकड़ा। तो वी कैन से, देखिए जी मटेरियलिटी मैंने आपसे शेयर किया, इस मटेरियलिटी के ऊपर और इस सैंपल के बेसिस मैंने ऑडिट किया है, अगर इस सैंपल और इस मटेरियलिटी में वो बिल आता है देन आई एम रिस्पॉन्सिबल, इफ इट इज नॉट देयर देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और ये सेम वे जो हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, हम ऐसे 705 पे कर रहे हैं, हम टैक्स ऑडिटर में भी टैक्स अथॉरिटी को बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि हमने कहा है ऐसे 700 के अंदर ऑडिट किया है, मटेरियलिटी पे ऑडिट किया है, यू कैन नॉट हेल्ड अस रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरी बिल। अगर 5 लाख रुपए का मशीनरी का बिल परचेज में चला गया था तो ऑडिटर को आप नेग्लिजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि मेरे को ऑडिट कैसे करना है। So we can use these materiality and we should share this materiality with the management. Then we communicate with those charged with the governance, the audit planning, audit scope, audit finding, timing of nature, timing, extent of auditor, ऐसे 260, ऐसे 265 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप देखिए एक एक लाइन में एक एक स्टैंडर्ड हम कवर कर रहे हैं, ऐसे 260 ऐसे 265 कवर कर रहे हैं। 265 कहता है कि जो आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एनालाइज किया उसके वीकनेसेस को आपने मैनेजमेंट से शेयर किया, TCWG से शेयर किया। S265 ऐसे 265 कहता है जो भी आपकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो आपने मैनेजमेंट से शेयर किए, जो आपकी ऑडिट फाइंडिंग्स हैं वो आपने मैनेजमेंट से शेयर किए, जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आपने निकाली वो आपने मैनेजमेंट से शेयर किए, और जो भी आपने ऑडिट रिपोर्ट डिफाइन फॉर्मेट बनाया वो मैनेजमेंट से शेयर किया। तो ऐसे 260 को आपने, तो ये ऐसे 260 आपकी ऑडिट फाइल में होना चाहिए। ये सब चीजें आपने TCWG या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या दो जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके साथ शेयर किए हैं, दैट शुड बी देयर इन योर ऑडिट फाइल। सो दिस इज व्हाट 260 and 265 इज। वी आल्सो प्रोवाइड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस स्टेटमेंट दैट वी हैव कंप्लाइड द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हमने कहा कि हमने TCWG से को बताया कि हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, और हमने जो भी थ्रेट थे हमारी इंडिपेंडेंस में, अभी हमने कोड ऑफ एथिक्स 1 जुलाई से जो आ गया है, हमने पढ़ा है कि थ्रेट्स क्या हैं, हमने पढ़ा है कि एथिक्स क्या है और उसके सेफगार्ड्स क्या है। तो ये सब चीजें अब हमारे को कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बहुत क्लियरली असर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं कि हमारी बड़ी बड़ी ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स, कि हमने ऑडिट रिपोर्ट में बहुत अच्छे से असर्ट किया है कि हमने सारे स्टैंडर्ड्स को ओबे किया। जो भी स्टैंडर्ड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी ऑडिट फाइल में उसका जिक्र होना चाहिए कि ऐसे। अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए बताता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट का एक चेकलिस्ट है स्टैंडर्ड की, 180 पेज की है। मनमोहन जी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ श्योर श्योर। 180 पेजेस की शीट है वो। अगर हम कोशिश करें, हिम्मत करें, मैंने कोशिश की है अपने पर्पस के लिए, मैंने अपनी ऑडिट एंटरप्राइजेस को देखते हुए उसको 36 पेजेस में सारे स्टैंडर्ड्स को कवर किया है। तो अगर हम एक ऑडिट फाइल में वो 36 पेजेस का रिप्लाई लगा लेते हैं तो हमारा, हम बता लेते हैं इस ऑडिट के अंदर हमने स्टैंडर्ड को कैसे कैसे अप्लाई किया है। क्योंकि हमारा अगर कोई स्टैंडर्ड छूट जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर स्टैंडर्ड, अगर हमने किसी स्टैंडर्ड्स को अडेयर नहीं किया है, उस स्टैंडर्ड के ऑडिट नहीं किया है, तो वी हैव टू राइट इन आवर ऑडिट फाइल कि उसकी जगह हमने कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं जो ये बता सके कि वो स्टैंडर्ड्स को हमने ओबे किया है। क्लियर है सर? तो ठीक है सर, वो शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ भी। सर वो कर दूंगा मैं। ठीक है सर। तो ये सारे मैंने जो पहले कहा था फर्स्ट 8, 1, 7 एंड 1। रमेश जी सर, ये तो आप शेयर कर ही देंगे। ये जो आप हर लाइन के बाद, हर सेंटेंस के ऑडिट रिपोर्ट के बाद एक एक ऐसे का रेफरेंस दे रहे हैं, तो किसी इस ये जो ऑडिट रिपोर्ट का ब्रेकअप बना के हर सेंटेंस के बाद उस ऐसे का रेफरेंस डलवा करके जरा दे दीजिए हमें। ठीक है सर, 1 वीक का टाइम दीजिए, मैं उसमें थोड़ी सी ब्रीफिंग भी दे दूंगा। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। I'll do that.
अब जो लास्ट इसमें हमने जो सेशन दिया वो सेशन किया रिगार्डिंग की ऑडिट मैटर, क्योंकि सिर्फ लिस्टेड कंपनी में एप्लीकेबल है, इसलिए मैं 1+7+1 कहा, क्योंकि 1 जो है ये लास्ट वाला है कि लिस्टेड कंपनी के लिए है। लेकिन हमारा गाइडेंस नोट कहता है कि आप इसको अदर कंपनी में यूज करें, कोशिश करें यूज करने की, क्योंकि ये मैं की ऑडिट मैटर को क्या कहता हूँ, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आजकल बड़ा फैशन हो गया कि जो किचन होता है वो ग्लास होता है, ओपन होता है, दिखता है ग्लास लगा के कि जो शेफ है उसने कैप लगा रखा है, ग्लव्स यूज कर रहे हैं, क्लीनलीनेस कैसी है, और जब सब कुछ हम वो देखते हैं तो हमें वहाँ खाने में मजा आता है, हमें लगता है कि ये रेस्टोरेंट ठीक है, हमने इसकी क्लीनलीनेस देखी है, हमने इसका वर्किंग देखा है, एंड वी लाइक टू ईट देयर। लाइकवाइज वो कहते हैं कि ये जो की ऑडिट मैटर है उसी तरीके से है, आपने ऑडिट कैसे किया है आपने खोल के बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स उस ऑडिट में थे उसका आपने बताया कि मैंने ये ऑडिट कैसे किया है, तो जो यूजर है उसकी जो रिलायबिलिटी ऑन द ऑडिट रिपोर्ट है बढ़ जाती है। दिस इज व्हाट द की ऑडिट मैटर है। इसके आगे मैं चलता हूं तो हम आते हैं मॉडिफिकेशन पे। मेरे ख्याल से मैं मॉडिफिकेशन में डिस्कस नहीं करना चाहता कि कब हमें मॉडिफाइड देना है, कब अनमॉडिफाइड देना, कोई नया ऐसा कुछ नहीं है। ऑल दी मेंबर्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि हमें कब मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, कब क्वालिफाइड देना है, कब डिस्क्लेमर देना है, कब एडवर्स देना है। आई डोंट गो इनटू दैट डिटेल। हाँ, ये है कि मिस स्टेटमेंट क्या है, वी हैव डिस्कस मिस स्टेटमेंट क्या है। मिस स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड एंड व्हाट इज डिस्क्लोज्ड, whether it is a recognition, whether it is measurement, classification, presentation और disclosure। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब प्रिंसिपल्स के हिसाब से जैसे दिखाना चाहिए था और जो हमने फाइनेंशियल जो भी उसमें डिफरेंस है दैट इज मिस स्टेटमेंट। और हम जब कोई भी ओपिनियन देते हैं तो हम एक ऑडिट जो करते हैं एक सैंपल साइज पे करते हैं। सपोज हमने परचेज चेक करनी थी, परचेज साइज में हमने सैंपल लिया, तो सैंपल 1 मिनट के लिए सैंपल हम डिस्कस करते हैं। सैंपल हमें कैसे लेना है? सैंपल हमें ऐसे लेना है कि हम कोशिश करें कि सैंपल पूरे पॉपुलेशन को कवर करता हो। ये नहीं है कि हमने कहा कि 5 लाख से ऊपर सारी आइटम ले लो। अगर हमने कहा 5 लाख से ऊपर सारी आइटम ले ली तो दैट इज नॉट ए सैंपल। 5 लाख की छोटी आइटम को तो वो कवर ही नहीं कर रहा। तो एंटायर पॉपुलेशन को कंट्रोल कवर करना चाहिए। यू हैव टू सिलेक्ट सैंपल एंड द सिलेक्शन शुड बी लाइक दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैव द इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। दिस इज व्हाट द सैंपलिंग इज। तो जब हम ऑडिट कर लेते हैं तो हम कुछ स्टेटमेंट में मिलती हैं तो हमें उस सैंपल साइज में मिलती है, उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं हम एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर। सपोज 10 करोड़ की टर्नओवर के 10 करोड़ की टर्नओवर हम चेक कर रहे थे। 10 करोड़ की हमने जब सैंपल लिया 20 करोड़ लिया, 20 करोड़ में 2 लाख रुपीज की एरर मिलती है, मीन्स 20% चेक किया था। उसको एक्सट्रापोलेट अगर हम 100 करोड़ पे करेंगे तो टोटल एरर कितनी हो गई? तो दिस इज पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। तो जो भी हम ओपिनियन देंगे एडवर्स या क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, जो हम कहते हैं परवेसिव और मटेरियल, तो मटेरियलिटी जो हम देखेंगे वो मटेरियल देखेंगे एक्स्ट्रापोलेशन के बाद। ये नहीं है कि अब जिस सैंपल साइज में हमने मिस्टेक मिली है एक्स्ट्रापोलेटेड टू द एंटायर पॉपुलेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल डिफाइन वेदर इट इज मटेरियल, वेदर इट इज परवेसिव एंड अकॉर्डिंगली वी विल गिव द रिपोर्ट। मैं इसको नहीं कवर कर रहा हूँ। इसमें मैं एक बात डिस्कस करूंगा कि जो गाइडेंस नोट में कहा है कि जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हम यूज टू राइट सब्जेक्ट टू। हमारी गाइडेंस नोट ने कहा इंस्टीड ऑफ राइटिंग द वर्ड सब्जेक्ट टू वी शुड यूज द वर्ड एक्सेप्ट फॉर। तो वो हम ध्यान रखें। सेकेंडली वो मैंने आपको बता दिया था, अगर डिस्क्लेमर देंगे तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस जो पैराग्राफ है दैट वी विल अकॉर्डिंगली चेंज। थर्डली जब हम कहते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड, इन दैट केस जो भी हम लिखते हैं हम ऐसा ना लगे कि किसी की मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि व्हाई दी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस आर नॉट गिवन बाय द मैनेजमेंट। उसकी एडवोकेसी हम ऑडिट रिपोर्ट में ना करें। वी सिंपली वी राइट दिस वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड। सपोज इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास बुक्स हैं, वी कैन राइट द बुक्स आर विद द इनकम अथॉरिटीज, बट ऐसा कोई भी वर्डिंग ना आए जो कि बताए कि मैनेजमेंट को हम एडवोकेट कर रहे हैं इन दैट सिचुएशन। ये हमारा गाइडेंस नोट के वर्जन है। आई सिंपली वांटेड टू नेक्स्ट इज एम्फिसिस पैराग्राफ, एम्फिसिस मैटर पैराग्राफ। 2 मिनट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। एम्फिसिस मैटर यूएम पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसको हम यूज करें, जितना अच्छा यूज करें उतना अच्छा है। ये उसी आइटम के लिए यूज हो सकता है, उसी मैटर के लिए यूज हो सकता है व्हिच हैज बीन एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल क्लियरली बहुत अच्छे से डिस्क्लोज किया गया, लेकिन आपको लगता है कि यूजर को इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। सपोज 31 मार्च की आप रिपोर्ट बना रहे हैं, कोविड के केस में इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आई एम टेलिंग यू यूएम पैराग्राफ।
कोविड की जो रिपोर्टिंग है बहुत इंपॉर्टेंटली इसकी होनी है। इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक कंपनी का हमने ऑडिट किया 31 मार्च को, उसके पास 100 करोड़ का स्टॉक, 31 मई को उसके फायर हो गई और वो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 31 मार्च की जो बैलेंस शीट में है वो स्टॉक बिल्कुल ठीक एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है, स्टॉक तो मत था, लेकिन वाइल यू आर साइनिंग गिविंग द ओपिनियन वो स्टॉक जल चुका था। तो ईओएम पैराग्राफ में हम उसको डाल देंगे कि एक द फायर हैज अकर्ड ऑन सच एंड सच डेट एंड द स्टॉक ऑफ सो मच, नोट नंबर आप उसका देंगे, इस नोट नंबर में ये स्टॉक दिया गया है, एंड विच हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड, appropriately disclosed, but that fire has destroyed the stock and we are not qualifying the opinion. We write out further that we are not qualifying, लेकिन हमें पता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर उसके बेस पे डिसीजन लेगा। या एक बहुत बड़ा एग्जांपल था, एक कंपनी का 3 शिप थे, एक शिप आफ्टर 31 मार्च सिंक हो गया, तो ऑडिटर ने उसको यूएम पैराग्राफ में डाल के बताया कि 3 में से एक शिप नहीं है उसके पास, क्योंकि जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको पता है कि मेरे को 2 शिप के बेस पे डिसीजन लेना है, ये उसका हो चुका है। तो दिस इज ईओएम पैराग्राफ व्हिच विल बी यूज्ड। तो इसमें 3 चीजें, अनसर्टेनिटी को फ्यूचर आउटकम लिटिगेशन है, कोई ऐसा लिटिगेशन चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिटिगेशन है, बहुत मेजर अमाउंट है, उसका आउटकम अगर 31 मार्च के बाद आ गया है और उसको कंपनी के अगेंस्ट आ गया तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे ईओएम पैराग्राफ में उसको जरूर यूज करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज अदर मैटर पैराग्राफ, ये डिफरेंट है ईओएम से। ईओएम में हम उसकी बात करते हैं विच हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड एंड प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम बात करते हैं विच इज नॉट प्रेजेंटली और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा पैराग्राफ है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसकी काम करने में कोई भी लिमिटेशन आई है, सपोज हमने कहा अपने क्लाइंट से कि मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए और आपके क्लाइंट ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको नहीं लेने दिया, आप उससे क्वालिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज दी ऐसे 505 सेज कि आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के आपको सेटिस्फाई करना है। इफ यू आर सेटिस्फाइड यू विल नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट, बट यूएम ये अदर मैटर पैराग्राफ यू राइट कि दिस वाज द कंडीशन, दिस आवर माय ऑडिटिंग हैज नॉट अलाउड मी दिस। यूजर्स को पता चलना चाहिए कि आपको वो जो आपका ऑडिट प्रोसीजर एज पर स्टैंडर्ड आपको रिक्वायर्ड था, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई प्रोसीजर जो आपको करना था, लेकिन आप नहीं कर पाए बिकॉज ऑडिटर ने नहीं करने दिया या किसी और कारण से नहीं कर पाए। दोस प्रोसीजर्स वी हैव टू राइट इन अदर मैटर पैराग्राफ, like in the case of observation of the inventory SA 501 we are required to observe the inventory physical verification on the last at the close of the financial statement, लेकिन because of COVID we could not do it, for any other reason management ने आपको allow नहीं किया and you have applied other audit procedures but you give in other matter paragraph कि ऐसे 501 के हिसाब से I was supposed to observe and I could not do it because such reason। तो या कोई सब्सिडरी मैंने ऑडिट नहीं की, कोई छोटी सी ब्रांच थी रिमोट में थी, मैंने ऑडिट नहीं की, व्हाटएवर ऑडिट प्रोसीजर यू कुड नॉट डू, अदर मैटर पैराग्राफ इज देयर, ये आपका वेपन है। क्लियर है सर? नेक्स्ट, जैसे जैसे इंस्टीट्यूट की ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर में ही ये लिखा गया था कि एनआईआरसी की बैलेंस शीट ऑडिट नहीं है। हाँ जी, इंस्टीट्यूट की ऑडिट रिपोर्ट में ही अदर मैटर में ही ये लिखा गया था कि एनआईआरसी की बैलेंस शीट अभी तक नहीं बनी। हाँ, बस एक पर्टिकुलर पार्ट की ऑडिट नहीं है, बेटर उसमें ये हो रहा है अगर हम उसकी डिटेल भी दे दें, उसकी टोटल एसेट्स क्या है, उसकी टोटल रेवेन्यू कितना है, वो भी हम डाल दें जिससे पता चले कि इसका टोटल से कितना सिग्निफिकेंट। उन्होंने वहां मटेरियलिटी को देख के उसको इग्नोर कर दिया। हाँ, बट मतलब मैं समझता हूँ कि अगर वो दें तो ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने आपको ये बात जवाब दिया था कि वो वहां नहीं दिया गया है, बट आई फील सो कि अगर वो भी दे दे तो अच्छा रहता। तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ये की ऑडिट मैटर पैराग्राफ वो होते हैं जो कि हम जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट एफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी वी डिस्कस विद दोस चार्ज विद द गवर्नेंस। आउट ऑफ दोज एफिशिएंसीज, आउट ऑफ दोज डिस्कशंस, आउट ऑफ दोज एरियाज जो हमें लगता है आउट ऑफ सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट थे, उसको हमें कैम्प में डालना है। कैम्प कौन से हो सकते हैं? उनका 3 तरीके के कैम्प हो सकते हैं। एक तो 315 में जो हायर रिस्क असेस हमारे हैं वो आर दी की ऑडिट मैटर, या जहां मैनेजमेंट का जजमेंट यूज हुआ है, क्योंकि जहां मैनेजमेंट का जजमेंट यूज हुआ है, आपने मैनेजमेंट को जजमेंट को जो एक्सेप्ट किया है तो अपना जजमेंट भी यूज किया है। अगर आपने उसके एस्टिमेट को एक्सेप्ट किया है तो दैट वाज अ जजमेंट एंड यू यूज योर जजमेंट आल्सो टू एक्सेप्ट द जजमेंट, तो दैट इज आल्सो हाई रिस्क एरिया। थर्ड, कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस है, कोई मर्जर हो गया कंपनी के अंदर, कोई मेजर आरपीटी ट्रांजेक्शंस है, या any unusual transaction which is not a normal business transaction of the company, that is also a key audit matter paragraph। तो इन 3 एरियाज के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से की ऑडिट मैटर पैराग्राफ्स हैं, उसको आपको रिपोर्ट करना है। और कैसे रिपोर्ट करना है?
आपको बताना है ये की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है, उसको पैराग्राफ देंगे कौन सा ऑडिट क्या है, व्हाई देन विल से व्हाई इट इज ए की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। फिर हम बताएंगे कि ये हमने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स इसमें लगाए हैं टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स। हाँ, हम ये नहीं उसका इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं देंगे, विल से दैट वी हैव कंसीडर्ड दिस इन फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ द ओवरऑल ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कितने की ऑडिट मैटर पैराग्राफ हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द एंटिटी। हाँ, लिस्टेड कंपनी के केस में वेयर कैम इज मैंडेटरी, अगर देयर इज नो कैम you have to write clearly why there is no CAM. Yeah, there is no CAM. That assertion should be there in the audit report itself. जहाँ disclaimer opinion है वहाँ CAM नहीं होगा, modified opinion है, adverse opinion होगा, but whenever there is a disclaimer opinion there will not be any CAM. So दिनेश जी, जी सर, जब भी हम ये प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करते हैं, यस सर, यूजुअली उन सारे केसेस में कोई भी परचेजेस होती हैं, एक्विजिशन ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है या ये है, वो म्यूचुअली डिस्कस्ड प्राइसिंग पे हो जाती है। वहाँ पे कोई कोटेशंस लेना, कोई टेंडर करना, कोई बिडिंग करना, और हाउ दे हैव अराइव्ड दैट कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन, या वो इस तरीके के कोई डिस्कशन एनालिसिस तो होते नहीं, एंड दोज आर द फाइनेंशियल मैटर्स। उसके ऊपर ऑडिटर को किस तरीके से जस्टिफिकेशंस और उसको सेटल करना चाहिए? देखिए पहली चीज तो ये है कि वीकनेस इन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हो गया। दिस इज ए मेजर वीकनेस इन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कि जो परचेज हो रही है वो किससे हो रही है, वो बेसिकली मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल वाली जो हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, कि कुछ लोगों के हाथ में वो कंट्रोल है, वो उसको कर रहे हैं। उस केस में देखिए अब ऑडिटर क्या कर सकते हैं, पहली चीज है आपने कहा कि वो प्राइस को कैसे डिफाइन किया कि ये प्राइस कॉम्पिटिटिव है, तो यू शुड एट दैट सिचुएशन यू कैन आस्क फॉर इट, आस्क द मैनेजमेंट कि हाउ यू फाइंड इट टू बी कॉम्पिटिटिव आपकी ऑडिट फाइल के लिए। ठीक है, आपने जैसे भी माना उसे, इज इट सफिशिएंट कि अगर मैनेजमेंट कहता है कि वी ओवरऑल बिकॉज वी आर द ओनर एंड वी आर द मेजर स्टेक होल्डर ओनली, so we have exercised our wisdom and our trade inquiries and have done those acquisitions accordingly, but we have not put the things on paper. Yes, ऐसा नहीं है, ठीक है, उनके कहने से नहीं होता। Since they honor means doesn't mean कि honor जो है, in the case of a private company at least, जो honor है, honor कौन है, honor is different with the management, management is different, honor is different। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट से नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर से है। अब उन्होंने किस बेस के ऊपर डिसीजन लिया, दैट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, दैट इज द वीकनेस इन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स फर्स्ट। बट जब हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करते हैं, परचेजेस आर देयर, बिल्स आर देयर, पेमेंट आर देयर, स्टॉक इज देयर, all those things whatever is reflected in the financial statement is properly reflected. You cannot qualify the report on the basis of that, but you can write that there is a weakness in the internal controls. That is the only weapon you have. तो वो material weakness in internal control या ये this has to be written separately, क्योंकि इसके लिए qualification तो नहीं होगी। नहीं, IFC अगर applicable है तो आप qualification दे सकते हैं। अच्छा, IFC अगर applicable है, प्राइवेट कंपनी नहीं है और ऐसी कंपनी है, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को आपको क्वालिफाई करना चाहिए। नहीं, वो तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर रिपोर्टिंग है। हाँ, पर तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए तो वी आर नहीं सर, आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को मैं स्पेसिफिकली लिखना है कि ये वीकनेस है इसमें, व्हाई यू आर क्वालिफाइंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस। ओके, एंड देन यू विल राइट दैट आई एम नॉट क्वालिफाइंग द मेन रिपोर्ट बिकॉज आपके उसके लिए तो आपका कोई एविडेंस है नहीं ना क्वालिफिकेशन के लिए। कि बिल्स आर देयर, पेमेंट इज देयर, स्टॉक इज देयर, हाउ कैन यू क्वालिफाई द रिपोर्ट सो लॉन्ग एज यू हैव एनी एविडेंस। देखिए जितना मैं कहता हूँ ऑडिट को मॉडिफाई करना ज्यादा मुश्किल है अनमॉडिफाइड से। बिल्कुल बिल्कुल, मॉडिफाई करने के लिए आपको ज्यादा एविडेंस चाहिए, बट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को मॉडिफाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं चाहिए। राइट, तो आई से कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को तो आप क्वालिफाई कीजिए जितना कर सकते हो। नेक्स्ट इज दी
की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आई थिंक इससे ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट कवर कर लेता हूं हमारे अदर मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, ऐसे 720 जो रिवाइज हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन इज दोज इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन द एनुअल रिपोर्ट। सर अदर इंफॉर्मेशन, जो अदर इंफॉर्मेशन है दोज कैन बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दोज कैन बी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके लिए मैं जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल दो तरीके की है। एक है टू ऑब्टेन ऑन टाइमली बेसिस एंड टू रीड दोज इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी देन टू रिपोर्ट। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, टू ऑब्टेन ऑन टाइमली बेसिस, टू रीड and to report in the audit report if there is any inconsistency. अब क्या हो सकता है, तीन चीजें इसमें कहा उसने। अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। आप समझ, दो तरीके की इनकंसिस्टेंसी की बात करता है। व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्नओवर है 500 crores और अदर इंफॉर्मेशन में कहीं बजट दिया है या कहीं प्रोजेक्शन दिया है या कहीं और टर्नओवर लिखी है, वहां टर्नओवर लिखी 600 crores। So there is an inconsistency between the financial statement and other information. So this is inconsistent between these two. Or there can be inconsistency between other information and the auditor knowledge. जैसे other information में लिखा कि there are 400 employees। जब हमने ऑडिट किया ऑडिटर ने, तो ऑडिटर ने जब सैलरी रजिस्टर देखा तो there was 350 employees. So that means the report, the figure given in the other information of 400 is incorrect, or the auditor knowledge is incorrect. So disparity कहाँ हो सकती है? Either other information can be correct, or financial statement can be correct, or other information, auditor knowledge can be correct. So कहीं भी inconsistency हो सकती है। तो तीन inconsistency को हमें देखना है। तो सबसे पहले देखना है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी है और हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, एक ब्रांच की टर्नओवर हमारी बैलेंस शीट में आने से रह गई, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं टू रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन द फ्रेश ओपिनियन, फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट, देन सर्कुलेट, ऑल दोज स्टैंडर्ड्स विल बी एप्लीकेबल। क्लियर सर? नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन ऑडिटर नॉलेज में इनकंसिस्टेंसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कोई रिवीजन तो होना नहीं है। बट अदर इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर के पास है, दैट इज सो मटेरियल दैट कैन इफेक्ट द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जो ऑडिटर ने ऐसे 315 में रिस्क असेसमेंट किया था, दैट वाज नॉट करेक्ट। So in that situation, because of those other information which auditor has incorrectly had, so that whether it was impacting the risk assessment, if it is impacting, then whether it is impacting the audit procedure, if it is impacting the audit procedure, then impact on that audit procedure and impact on the audit report itself. That you have to check. So this is what regarding the, if the auditor, the financial statements are incorrect or the auditor knowledge is incorrect. But ये जो standard है, ये बात करता है if the other information is incorrect. तब हम क्या करेंगे? If the other information is incorrect, so first of all you will ask the first, पहली जिम्मेदारी आपकी क्या है कि to obtain on timely basis. Timely basis का मतलब क्या है? Before giving the audit report आप कहिए मैनेजमेंट से कि साहब हमें अदर इन्फॉर्मेशन दीजिए। होता क्या है कि उन्होंने तो एनुअल रिपोर्ट सीधी प्रिंटर को देनी होती है, ऑडिटर को तो प्रिंटर के बाद आती है। आप कहिए देखिए आप प्रिंटर को दे दीजिए, बट उसके कंसिक्वेंसेस आप भी भुगतेंगे। तो बेटर ये है कि आप मेरी ऑडिट रिपोर्ट से पहले मुझे अदर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, सो दैट आई कैन रीड, इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी आई कैन टेल यू। तो सबसे पहले अगर इनकंसिस्टेंसी आपको मिलती है, यू विल टेल टू दी मैनेजमेंट कि आप इसको ठीक कर दीजिए। अगर मैनेजमेंट ठीक कर दे, वेल एंड गुड। मैनेजमेंट ठीक ना करे तो यू विल गो टू दी दो चार्ज विद द गवर्नेंस कि साहब इसको ठीक करा दीजिए। ठीक करा दिया, ठीक है, नहीं कराया तो यू विल ओनली रिपोर्ट इन द ऑडिट रिपोर्ट कि क्या क्या इनकंसिस्टेंसी आपने अदर इंफॉर्मेशन में मिली है। ये तो हो गया अगर ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिल गई।
अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद मिली तो क्या होगा? उसमें अगेन सिचुएशन ये है कि वेदर दैट रिपोर्ट हैज बीन इशूड टू द पब्लिक, टू द शेयरहोल्डर्स, टू द यूजर्स। अगर उससे पहले आपको मिल गई है तो दैट कैन बी करेक्टेड, और अगर यूजर्स के पास जा चुकी है तो देन यू विल मेक श्योर कि जो करेक्शन आप ऑडिट रिपोर्ट में करेंगे वो रिपोर्ट उन सबके पास चली जाए जिनके पास पहले ऑडिट रिपोर्ट गई है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऐसे 720 में। इसके बाद दो बातें जो डिफरेंस है लिस्टेड कंपनी में और अदर कंपनी में। लिस्टेड कंपनी के केस में अदर इंफॉर्मेशन अगर आपको मिली या नहीं मिली, वेदर यू हैव रिसीव्ड और यू एक्सपेक्ट टू रिसीव, आपको रिपोर्ट करना है। अदर देन लिस्टेड कंपनी में आपको तभी रिपोर्ट करना है व्हेन यू हैव ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एनीथिंग एज पर एसेट 720। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड कंपनी एंड अदर कंपनी। So I think I have tried to cover all these standards regarding audit report. If you have any queries, I'll welcome. Yeah, Tarunesh ji, there are some queries in Q&A. Yes, You can yourself take up the Q&A box. हाँ, अगर आप स्लाइड स्टॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं स्लाइड शेयर। Yes, there is a query of Rajesh ji, whether emphasis matter paragraph are applicable to all companies. EOM paragraph is given as a 706. This is the audit report format and this is applicable to all companies. Depending upon the requirement, we should use the paragraph as I have discussed in EOM. सर ये स्लाइड शेयर बंद कर सकते हैं आप? स्टॉप, हाँ स्लाइड शेयर स्टॉप कर दीजिए। यस सर। मनमोहन जी, बेसिकली मैं जो ईओएम पैराग्राफ की बात करता हूँ, ये जो ईओएम पैराग्राफ है, क्वालिफिकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। राइट सर। जैसे हम किसी रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो 3 लाइट होती हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट एंड येलो लाइट। यस सर। ग्रीन लाइट इज अनमॉडिफाइड जी, येलो लाइट इज, रेड लाइट इज योर मॉडिफाइड। यस सर। एंड येलो लाइट इज कॉशियस। यस सर। तो दिस इज कॉशियस पैराग्राफ। जब हम यूजर्स को कॉशन दे रहे हैं कि आप जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो देयर इज अ कॉशन, आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि ऐसा कुछ इस कंपनी में बाद में हुआ है या ऐसा कुछ ऐसा है जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। दिस इज ईओएम पैराग्राफ इज अ कॉशन पैराग्राफ। और तो इसमें ऐसी कोई थ्योरी है नहीं है। तो और तो ऐसी कोई क्वेरी है नहीं इसमें पीएम में। विजय जी, विजय चौधरी जी कुछ शायद कहना चाहते हैं। विजय जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो बताएं तो सो दैट आई कैन पुट यू ऑन पैनल। इसमें ये एक क्वेश्चन है राजेश भाई जी का, impact of major events like fire etc in April 20 should be taken in March 20 financial statement or only note will be sufficient? Pardon me, just repeat. Whether impact of major event like fire etc in April 2020 should be taken in March 20 financial statement or only note will be sufficient? ये देखिए 31 मार्च को जो इन्वेंट्री है वो तो करेक्टली रिफ्लेक्टेड है और वो थी, एग्जिस्ट करती थी। यू कैन नॉट रिवाइज, यू कैन नॉट चेंज द इन्वेंट्री ऑफ 31 मार्च बिकॉज ऑफ फायर। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर नॉट बी एनी इम्पैक्ट। देखिए जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं हमारे, वो दो तरीके के होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जो इवेंट हमारे को उस डेट के पर्टिकुलर डेट के ऊपर इम्पैक्ट करता है उसकी एडजस्टमेंट हमारी 31 मार्च को होती है, नॉन एडजस्टिंग के नहीं होती। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को हमें सिर्फ नोट्स में देना है और ईओएम पैराग्राफ हम उसको यूज करेंगे बाद। Okay. Another question is, when a company purchased 20 tally software for different branches for rupees 8 lakh, the company has capitalized it, ABD taken depreciation, whether it is right? So basically I think so कि
हम टैली लेते हैं तो वी आर नॉट परचेजिंग एनी सॉफ्टवेयर, वी आर ओनली परचेजिंग द लाइसेंस टू यूज. सो दिस इज नॉट एन एसेट टू बी कैपिटलाइज्ड. इसमें थोड़ा सा यस दिस इज ए लाइसेंस फॉर यूज, बट सर इसमें perpetuity है. इफ वी डू नॉट वांट टू रिन्यू इट, even then it can be used to for a long period of time. Even if we are not updating it year on year to year basis or not renewing it the contract for updating, even then the same can be used for a long period of time. So whether in that case it shall be capitalized because the enduring benefit will come in the years to come. देखिए मनमोहन जी, जो इंटेंजिबल एसेट है, जब हम इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं तो इंटेंजिबल एसेट के लिए को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड्स के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि हमने परचेज किया है, क्या हम उसको आगे सेल भी कर सकते हैं, हमारे पास उसके राइट, क्या हमारा राइट तो कोई है नहीं उस इंटेंजिबल एसेट का. वी आर यूजिंग इट फॉर ए लिमिटेड पर्पस, उसका राइट हमारे पास कोई नहीं है. हाँ, उसका रिप्रोडक्शन राइट या रीसेल राइट नहीं है. बट वो जो एक हमारे पास इंटेंजिबल एसेट का यूजेज राइट आया है, that uses right will give us the benefit over a more than one financial year. More than. So whether that can be, because that is your own right. एक बार आपने लाइसेंस ले लिया टैली जैसे सॉफ्टवेयर का, तो आप उसको यूज कर सकते हैं आगे तक. वो आपकी कॉपी का राइट, चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में है चाहे हार्ड फॉर्म में है, वो कोई आपसे ले नहीं सकता वापसी. और इसीलिए टैली के ओरिजिनल प्राइस जब फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं वो ज्यादा है और आपके रिन्यूअल जो है एनुअल रिन्यूअल प्रीमियम वो अलग है. तो मनमोहन जी, हम रिन्यूअल तो हम डेफिनेटली पे कर रहे हैं ना उसका. हाँ नहीं, जरूरी नहीं. हाँ नहीं, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं पे करते हैं तो उसके जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे पास नहीं आते, मॉडिफिकेशन हमारे पास नहीं आते. यस. सर ऐसा तो किसी भी मशीन Still we can use. का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है. सर ये ऐसे बहुत सारे हैं. इवन हम जब सैप, जब हम ERP कोई दूसरे सैप या ओरेकल वगैरह भी लगाते हैं, इवन दो अगर हम उसमें अपडेट्स ना लें, उसकी जो ओरिजिनल प्राइसिंग है उसको तो हम कैपिटलाइज तरुणेश जी कर ही रहे हैं. सो उस पे क्या आपका कहना है? देखिए सैप की जब बात करते हैं, सैप में कभी कभी इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कस्टमाइज भी होते हैं. सैप हम जो नॉर्मली जो लेते हैं वो कस्टमाइज होते हैं. नॉर्मली कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन होता ही है. होते हैं. When it is customized, then you got the ownership. You get the ownership also. In that way, it becomes your personal thing. Okay. मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना महेश गावस्कर का क्वेश्चन है पूना से. अ प्राइवेट कंपनी परचेज्ड ए कार इन नेम ऑफ डायरेक्टर टू रिड्यूस RTO tax. Immediately after purchase, the agreement on stamp paper was entered to transfer the car to company. However, RTO record was not changed. Do the auditor need to disclose this? Tarunesh ji, are you? अगर RTO में ट्रांसफर नहीं हुआ तो auditor is supposed to disclose it. The company, the car in the company. तो देखिए कारों के अंदर तो हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं, but still whatever asset is there, if the asset is in the director, so is required to report on this. Right, sir. So ये I think it's a very serious matter. आप तो कभी बनेंगे ना कभी भी. Director. हाँ जी. So that means the asset is in the name of the company is in the name of the director. If the asset of the company is in the name of a director, then it's a serious lapse. 1 लाख कंपनियों में होगा सर ऐसा प्रोबेबली, कम से कम. सर होगा तो. Asset is in the name of the company and it's been put in the company's balance sheet in the name of the asset is in the name of the director. और उसमें बकायदा रिजोल्यूशन पास है कि हाँ जी it is authorized to be in the name of the registered in the name of the director. अभी तो बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स इवन प्रॉपर्टीज इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स हैं. और कंपनीज एक्ट जैसा सब लोग डेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग पता ही है हमें कि वो नहीं उसकी रिपोर्टिंग होनी है और वो नहीं हो सकती, बट स्टिल तो यस सीरियस इशू तो है ही है सर. ये सीरियस इशू तो है ही है. ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें ऑडिटर को सीरियसली लेना चाहिए. हाँ बिल्कुल, इसको रिपोर्टिंग में रहना चाहिए सर. रहना चाहिए.
फिर विपिन गेरा जी का क्वेश्चन है, सर सपोज इन फाइनेंशियल ईयर 1920 देयर वाज नो इशू ऑफ गोइंग कंसर्न एज ऑन 31/3/20, बट at the time of audit due to lockdown the company has incurred major losses, raising a doubt on going concern whether this should be reported. If yes, then how, since our report is as at 31/3/20. देखिए यही जैसे जो यूएम पैराग्राफ है दैट इज उसकी इंपॉर्टेंस यही आ रही है। आफ्टर 31 मार्च कोविड की वजह से अगर किसी एंटरप्राइज के ऊपर मेजर इम्पैक्ट आया है एंड वी रिस्क एनालिसिस किया हमने और पता चलता है कि इम्पैक्ट आया है। अभी हमारे इश्यू का जो गाइडेंस नोट आया उन्होंने यूएम पैराग्राफ पे सैंपल भी दिया है कि अगर किसी का मेजर कस्टमर बेस ही खत्म हो गया या कोई प्रोडक्ट लाइन ऐसी हो गई जो आप बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो सकती है, या कोई और ऐसा जैसा आपने कहा सारे लॉसेज हो गए, उसके आगे की जो कैपिटल है वही वाइप आउट हो गई, नेटवर्थ ही खत्म हो गई है, देन इट्स ए सीरियस मैटर एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिपोर्ट बट यूएम पैराग्राफ फॉर दैट। एक अनदर क्वेश्चन है राजेश खुराना जी का, it is observed during the audit that some expenses which was not related to audit period and to be reversed, but due to balance sheet is finalized the expenses reversed in next year. Should we report this fact somewhere in audit report? तो true and fair view impact होगा उसका। If you have to see the materiality of those expenses, those not pertain to that particular year, so that means the true and fair view of the profit is not there. Depending upon the materiality or pervasiveness, you have to qualify or you have to give the opinion accordingly. It's a very serious point. Right, sir. एक CA विजय चौधरी जी का क्वेश्चन है, company under audit states to have received a long-term advance from a listed company. No material, however, is supplied against such advance. Listed company has undergone CIRP, which has been adjudicated in the IM of the said company. We do not find any claim against the company we are auditing. How do we deal with such situation in our report? We as auditor tends to differ with the management to write back such advance, classify under current liability, and tend to emphasize this as a matter. Please advise. Yeah. Actually, this is a liability of the company. The company suo moto cannot write back the any credit balance. So long as there is any document, no document, either that listed company which has given the advance should forego and say that we will not claim this. Without that, you cannot do it, and it is very difficult for a company to say that we will not claim the advance given to you. So, suo moto this company cannot do, and an auditor should not accept it. Even if they do it, we should write it. This is a liability. This is a liability, definitely. Even if the company in CIRP has not shown it as recoverable, even then on the balance sheet of Chaudhary Saab's client, it is a liability. Rather, I would say you must obtain the third party external confirmation. The company is into CIRP. I don't think for the external 505. अच्छा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात तरुणेश जी की है आपने, या वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो शायद कंपनी लेना नहीं चाह रही होगी। हाँ, दैट्स व्हाट ना, वो लेना नहीं चाह रही होगी क्योंकि लायबिलिटी देनी है। तो आप तो ऑडिट फाइल कंप्लीट कीजिए ना, जैसे हमने आप तो ऑडिट फाइल कंप्लीट कीजिए, उसने नहीं लेने दिया आपको। नहीं लेने दिया, क्यों नहीं लेने दिया? अच्छा तरुणेश जी, व्हाट इज द राइट वे टू ऑब्टेन थर्ड पार्टी कंफर्मेशन? देखिए, ये ऐसे 505 आज टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, अगर आप ब्रीफली बता दीजिए। ब्रीफली है कि ऐसे 505 में आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन करना है। उसमें डिफाइन किया गया कि दो तरह की कंफर्मेशन है, आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अगर बहुत छोटे छोटे बैलेंस की कंफर्मेशन है तो यू कैन आस्क फॉर द नेगेटिव कंफर्मेशन, कि अगर कोई कंफर्मेशन नहीं आई तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि यू एक्सेप्टेड इट, और यू कैन हैव द ब्लैंक कंफर्मेशन, और दी आप बैलेंस लिख के भेज सकते हैं, बगैर बैलेंस के भेज सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बैलेंस गलत लिख के भेजते हैं तो वो कंफर्म करता है, इसे वन अदर टाइप ऑफ कंफर्मेशन। तो बट कंफर्मेशंस आप पे डिपेंड करता है। कंफर्मेशन दो तरह की होती है, आइदर बैलेंस कंफर्मेशन और नॉट ओनली द बैलेंस, द ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन, कि परचेज की ट्रांजैक्शन है, एडवांस की उसने पैसा दिया, एडवांस दिया है, लोन दिया है, व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट आल्सो यू कैन ऑब्टेन। So they should be given directly to the concerned person, giving
ब्लैंक एनवेलप ऑफ द ऑडिटर जिसको एड्रेस होना है, जिससे कि उसको जो कंफर्मेशन भेज रहा है उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और आप ऑडिटी से उसका सही एड्रेस कंसर्न पर्सन का नाम लीजिए, उसी को एड्रेस कीजिए कंसर्न पर्सन को, और उसी के पास वो जाए। दिस इज द वे। और ये तो आपकी अपनी जजमेंट है कि आपको कौन सी कंफर्मेशन लेनी है। ओके, नहीं, बट ऑडिटर, whether the auditor can directly write to the parties that I need this confirmation, I am the auditor of this company, Yes. or the Auditor should directly. or the letter should directly. go from Directly, not through the auditing. The letter should go directly from the auditor. Okay, without knowledge of the auditor. Yeah, Vijay ji has joined us. Good evening, Vijay ji. I welcome you. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, Vijay ji का कुछ क्वेश्चन था, वही जो हमने पूछा। विजय जी में Tarun ji, see, my question is slightly different. You know, I am auditing a company, which I have, as I've stated, the facts I have stated is, you know, this company has received an advance some couple of years back, which they state that this advance is received against supplies. No supplies are made till date. The company which has given the advance and is a listed company has undergone CRP since 2017. This is out of the first 12, you know, famous companies. Now this CRP is complete. Now the adjudication is done. This probably was missed in your this thing. Now the management wants that, you know, since now there is no claim, I've seen the IM, nothing there. So I said, even if it is not there in the IM, how can, you know, the amount which the 50, the amount is substantial. Yes. So therefore, now emphasis on matter, I should be pointing out. No, this is not emphasis matter. This is not emphasis matter. This is not. This is not an emphasis matter. Because I'm differing. Because I'm differing with their opinion. We are differing with the opinion, then you have to qualify. UM paragraph is not. No. This amount they have given, sir. This amount they have taken into P&L account. No, they have not done. They are, because, you know, the balance sheet pending signature because of this issue. I said, if you write it back, then I will qualify. If you do not write it back, then I will draw emphasis. Because, नहीं, जो emphasis matter का तो paragraph है ही नहीं ना सर ये. Why emphasis matter? No, because, वो तो अगर उन्होंने नहीं write back किया तो creditor तो दिखाई रखा उन्होंने. Because I have a written representation from them that, you know, we want to write it back. नहीं, they want to write it back. If they are not right, sir, if they write it back, right, you should not agree. You will qualify. Correct. If they don't write it back, why it is UM paragraph? There is no UM. So therefore, that's right. That's what exactly my question was. It stays answered now. And thank you very much, sir. So no qualification in any case is not required. Even, you know, drawing attention is not able tomorrow. See, I am looking tomorrow as a perspective. For instance, next year again this will happen. So they say, sir, please tell us, since, you know, now we have no liability. The new management has not even sent us a note. They don't have they not have even communicated with us for receipt of this claim or whatever. So are you not showing the liabilities of company which are not in fact which is not in fact the liability any longer? So that is what the perspective, you know, when I ask this question is. Then you ask for the external confirmation? From whom? You ask the company that I will confirm. You write the letter to the company directly for confirmation. From the company which is now gone to the new management. Yes. Okay, right. Let them say we don't have anything to pay. So though when I ask this question, they say now, you know, when they have not, you know, they're not aware of this liability due to whatever reason, because since it was not in the IM or whatever, so therefore the moment you write it, they will you know, write a claim on us, and the amount is substantial. That is what I'm saying. No? You ask for the external confirmation, let them say no, we don't want. Give me the reason why not. Then how can you? So therefore that will complete my question. Is, you know, if they do not, if I insist and they do not send the confirmation, then what? Then will your opinion remain the same, or will it be changing? As per 505, you are supposed to obtain the reason why not. Correct. They will say no, because this, of course, they will only tell me verbally. They will not give me writing that, you know. You take in writing. And suppose they do not give it to me, then what, sir? Then either if they don't write it back, okay. If they write it back, you qualify. You have no other choice. And the qualification will be only on a non-conforming. They say, since you are already qualified on, you know, sir, one more issue.
I have also given a qualification on non-confirmation of receivables and payables. Not which is my- non-confirmation. Yeah. You see, there are two things. If they are showing as creditor, you have nothing to worry about it. It is properly reflected. Correct. But if They they are write it back, in correct. that case only you are going to qualify. Right. So it is not because of the non-confirmation. It is because the liability is there in their books. They don't have any evidence to say that the liability extinguishes. Therefore, now when they agree, okay, you let it be a liability. Please Yes. don't write. Don't permit us to write it back. So Yes. no attention is drawn, qualified or modified. Yes. Nothing is to be done. Nothing to write. Sorry. Nothing to write. Thank you very much. Happy. Thank you. Right, sir. I think many questions has been answered, and as Tarunesh ji have a lineup of another seminar right at 5 o'clock, and it's 5 o'clock, and we have also finished up our time of 2 to 5. Definitely, thank you very much, Tarunesh ji, for giving us a very quick insight on the audit report and what are the disclosures requirements and what are the risk assessment. Definitely, we will have more session in early September on audit and auditing standards. Thank you very much. I request and I hand over the proceeding to our Deputy Convener C.A. Ravindra Jain ji. Can I ask one question? नहीं सर अभी वन मिनट. हाँ सर प्लीज. सर वो जो तरुणेश जी आपसे शेयर करेंगे जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने 180 पेजेस को 36 किया, काइंडली हमसे भी शेयर कर दीजिएगा. हाँ सबसे शेयर होगा सर. डेफिनेटली. उपेंद्र जी अभी नहीं क्वेश्चन होगा. तरुणेश जी का नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा. He is required to join another seminar right now. सर आधा मिनट है, सबको बेनिफिशियल होगा. अच्छा सर पूछिए फिर आप, if you are so insisting. तरुणेश जी सॉरी आप बिजी जल्दी में हैं. सर एक क्वेश्चन ये है कि आरटीजीएस पेमेंट जितनी भी पार्टीज करती हैं ये पता नहीं चलता किस अकाउंट में गए. इवन इफ यू अप्रोच बैंक इज नॉट एबल टू टेल कहाँ से आया और कहाँ गया. नाउ यू डोंट नो कि पार्टी ने पेमेंट की है, किसी एक पार्टी को डेबिट की है, क्रेडिट की है, बट यू आर नॉट एबल टू कंफर्म कहाँ से आई, कहाँ गई है. Even if you approach the bank is not able to tell किस पार्टी को गई है. So what precaution should we take as auditors? हम टैक्स ऑडिट के लिए बात करें जो हमें रिपोर्ट करना होता है 48. जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, when they make party say 50 करोड़ 60 करोड़ जितनी भी बड़ी पार्टी होगी जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं थ्रू आरटीजीएस देने लगे हैं आरटीजीएस में, और बैंकर सब नाम देने लगे हैं. Then we approached the bank, but they said that they cannot display. उनके यहाँ display नहीं हो रहा. I visited the branch myself. ऐसा कभी वैसे I don't think so कि नहीं होना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि disclose ना हो पाए. Bankers may not be giving, but ऐसा तो हो नहीं सकता कि bankers की डिटेल ना दे पाए कि कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है पार्टी का नाम. Sir, this is what I have faced. But supposing such situation, then we shall have to qualify. देखिए ऐसा इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई तो कोई कर नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एविडेंस. और ये भी नहीं कर सकते सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस आपके क्लाइंट ने नहीं दिया. ये क्लाइंट के पास जो कुछ था उसने आपको दे दिया. तो इफ यू हैव एनी, आई सपोज कि इसमें थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कॉपी ऑफ अकाउंट आई थिंक इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. एक्सटर्नल कंफर्मेशन. Yeah, external confirmation is one of the solutions. External confirmation is a major weapon in your hand in auditing, because it is the most persuasive evidence you can obtain in your audit. चलिए सर, thanks a lot. ठीक है, over to रविंदर जी. थैंक यू तरुणेश जी, आपने बहुत अच्छा हमें आज एजुकेट कर दिया है. अभी तो मन नहीं कर रहा कि और बहुत चीजें है, क्वेरी है, लेकिन टाइम इतना लिमिटेड है, शॉर्ट है, आपका अलग सेमिनार है, तो मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लेके आपका ऑन बिहाफ ऑफ करोलबॉक्स सीपी स्टैटिस्टिकल आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने बहुत हमें ऐसे किया. आगे भी आपको हम बोलेंगे कि मेरी बहुत सारी क्वेरीज है, मैंने अपनी सारी रोक दी है. एनी टाइम सर, एनी टाइम ना. तो अब ये बाद में बात करेंगे. तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम ग्लैड फॉर यू कि आपने बहुत अच्छा किया. तो ऑल दी माय पैनलिस्ट आल्सो एंड ऑल दी आवर मेंबर्स फॉर देयर पेशेंसी हियरिंग है, और बहुत अच्छा था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल.
You may, panelists are very kind. They have been here. We may leave now. We all may leave now.